السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمپلیٹ رومانٹک ناول لے کے آئی ہوں۔ یہ کس بیس پہ ہے یہ آپ پڑھ کر سن کر پتہ چلے گا۔ تو مجھے بھی نہیں پتا کس طرح کا یہ ناول ہے، لیکن میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ایک عرصے بعد احمد ہاؤس میں خوشیوں کا سماں تھا، کیونکہ ملک کے نامور بزنس مین بلال احمد کے اکلوتے بیٹے شیروز کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاریوں کا ذمہ بلال کی اکلوتی بیٹی پریشا نے اٹھایا تھا۔ وہ اپنے زیر نگرانی گھر کا کونا کونا سجا رہی تھی، ہر قسم کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اکلوتے بھائی کی شادی میں کوئی بھی کمی رہے، پر یہ تو انسانی زندگی کا عملیہ ہے کہ اسے کچھ بھی مکمل نہیں ملتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ اور وہ کوئی کمی نہیں بلکہ ایک خلا تھا، جو کہ پریشا اور شیروز کی زندگی کا تاعمر حصہ بننے والا تھا۔ اور خلا تھا والدین کا، جنہیں دونوں بہن بھائی نے ایک کار حادثے میں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ پریشا اس وقت لاؤنج میں اپنے والدین کی ان لارج پورٹریٹ کے پاس موجود تھی۔ ہر طرف عجیب گہما گہمی تھی، منتظمین ادھر سے ادھر بھاگ کر اپنی مصروفیات کا ثبوت دے رہے تھے، پر اس ایک یاد نے جیسے سب کچھ منجمد کر دیا تھا۔ اپنے والدین کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پریشا کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ اس آنکھوں کے سامنے ان کے والدین کی وفات سے لے کر اب تک کی تمام مناظر پوری جزئیات کے ساتھ ایک فلم کی مانند متواتر چل رہے تھے۔ کیسے والدین کی وفات کے بعد شیروز نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے وسیع و عریض کاروبار کو اپنی ذہانت، بردباری اور مستقل مزاج طبیعت کی بنا پر سنبھالا۔ پریشا کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی توجہ دی اور ایک حساس، محبت کرنے والا، ذمہ دار بھائی ثابت ہوا تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح پریشا نے بھی اپنے بھائی کا ہر موڑ پر بخوبی ساتھ نبھایا تھا۔ غرض یہ کہ دونوں نے ایک دوسرے میں اپنے رشتے کو پایا تھا، اور اب اسی خوبرو اور شاندار سے بھائی کی شادی اس کی اپنی عزیز جان سہیلی سارا سے ہونے جا رہی تھی۔ اپنے گالوں پر آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے پورے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے لون کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ملازمین کی دوڑ لگی ہوئی تھی، ہر طرف رنگینیاں تھیں، پر وہ ایک فیز سے گزر رہی تھی۔ یادوں کا ریلا ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا۔ پریشا کو اردو ادب سے خاصا شغف تھا، پر چونکہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے وہ اپنے شوق کے لیے کافی عرصے سے وقت نہیں نکال پا رہی تھی۔ پر اب جب وہ میڈیکل کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی، لہٰذا پہلی فرصت میں اس نے لائبریری کا رخ کیا تھا، اور اپنی مطلوبہ کتاب نہ پا کر وہ لائبریرین سے اچھا خاصا الجھ چکی تھی۔ عجیب لائبریری ہے۔ مسلسل 15 منٹ کی بحث اور لائبریرین کا معافی نامہ سننے کے بعد پریشا نے تقریباً جھنجھلائے ہوئے کہا تھا، عجیب ہونے کے ساتھ غریب بھی۔ سارا جو اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، تقریباً بور ہو گئی تھی۔ اب اس نازک سی لڑکی کی تکرار سنتے ہوئے ادھر آ گئی تھی، اور اب بڑی دلچسپی سے پریشا کے ساتھ کھڑی تبصرہ کر رہی تھی۔ ہے نا، اپنی ہم صنف کو شکوہ کرتے دیکھ پریشا نے جھٹ تائید چاہی تھی، جس پر سارا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کچھ توقف کے بعد بولی تھی، ویسے اگر آپ چاہیں تو یہ ناول میں آپ کو لا کر دے سکتی ہوں، میں نے حال میں ہی منگوایا تھا۔ سچ میں؟ پریشا ایک دم خوش ہو کر بے یقینی کی کیفیت میں بولا تھی، یہ کہتے ہوئے ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا پتہ ہے، میں کیسے لے سکتی ہوں؟ ارے تو جان پہچان کون سا مسئلہ ہے، وہ ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سارا ملک ہوں اور حال میں ہی انجینئرنگ کے ایگزام سے فری ہوئی ہوں۔ سارا نے جھٹ سے اپنا ہاتھ آگے مصالحہ کے لیے انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تھا، جیسے بغیر کسی پس منظر کے پریشا نے تھام لیا اور اپنا تعارف کروانے لگی۔ وعلیکم السلام، میرا نام پریشا بلال احمد ہے اور میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ارے واہ، حیرت ہے، سارا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ حیرانگی کیسی؟ پریشا نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، پھر بھی اس سب کے لیے وقت نکال لیتی ہو، آئی ایم امپریسڈ، سارا نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ تو پریشا چھپ کر مسکرا گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر باتیں رہی، پھر دونوں اپنے گھر چل دی۔ سارا اور پریشا کی ملاقات تقریباً روز ہونے لگی تھی۔ عادتیں ایک جیسی ہونے کے باعث دونوں کی بہت جلد دوستی کے گہرے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ الگ ہونے کے باعث دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکال لیتی تھی، یہاں تک کہ گھر آنے جانے کا سلسلہ بھی چل نکلا تھا۔ اکثر پریشا سارا کو اپنے گھر لے آتی تھی، اور سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، کوکنگ کرتے اور کارڈز کھیلتے گزر جاتا تھا۔ شام میں شیروز کی آمد کے ساتھ ہی وہ پریشا سے اجازت لے کر گھر روانہ ہو جاتی تھی۔ شیروز کو اپنی بہن کی یہ سہیلی بہت پسند آئی تھی۔ نرم و نازک سی، سادہ سی طبیعت کی سارا شیروز کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس کے علاوہ سارا کے آ جانے سے جو اکیلا پن اس گھر میں تھا، وہ رونق میں بدل جاتا تھا۔ پورا گھر سارا اور پریشا کی کلکلاہٹوں سے گونجتا رہتا تھا۔ اب شیروز اس رونق کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کا حصہ بنانا چاہتا تھا، اس لیے شیروز نے اس سلسلے میں اپنی بہن کو اعتماد میں لیتے ہوئے اپنے دل کی
बात कह दी थी अपने भाई के इंतखाब पर। परिशे जहाँ शॉक्ड हुई थी वहीं बेइंतहा खुश भी थी। अपने भाई की न नैया पार लगाने के लिए इसने अपने बेस्ट फ्रेंड की रजामंदी दरकार थी, जिस पर फ़ौरन से बेशतर अमल करते हुए इसने सारा को करीबी कॉफ़ी शॉप पर बुलाया था। इधर-उधर की बातों के बाद प्रीशा ने अचानक सारा से इसकी पसंद के बारे में पूछा तो काफ़ी भीती सारा को शो लगा था। शायद वो इस अचानक सवाल के लिए तैयार नहीं थी। ओहो! क्या हो गया है? आराम से मेरी बहन। प्रीशा मुस्कुराहट दबाते हुए सारा की पीठ सहलाने लगी। पर मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। सारा ने फ़ौरन से पेशतर नफ़ी में सर हिलाते कहा, जैसे इसे किसी तरह ना करने से इसके दिल का चोर पकड़ा जाएगा। हाँ तो हाँ तो भी बनो पसंद करो। अभी कौन कौन कह रहा है तुमसे? अब तो हम डायरेक्ट तुम्हारे से शादी करवाएंगे। प्रीशा ने खालसा बड़ी भी के अंदाज में कहा, जिस पर सारा ने बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा, जी तो भी अम्मा शादी के लिए भी एक अदद दूल्हे की ज़रूरत होती है ना। दूल्हा तुम तैयार ही समझो। प्रीशा ने एक आंख शराब से मिचते हुए कहा, वैसे शरोज भाई के बारे में क्या ख्याल है? सारा ने कुछ बोलने के लिए लबवा किए थे। प्रीशा ने झुक कर रास्ताना अंदाज में सवाल करके इसे लाजवाब कर दिया। वो पहले ही कई लम्हे इसको देखती रही और फिर बात समझ आए तो ब्लश कर गई। वही एक लम्हा था प्रीशा के लिए, वो सारा के दिल के चोर को पकड़ गई थी। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। सारा प्रीशा के सवाल को नज़रअंदाज कसते हुए उजलत में उठी थी। जैसे ही प्रीशा ने दोबारा से खींच कर बिठाया था, वो एक बार फिर प्रीशा के नरगे में आ चुकी थी। शुरुआत में तो इसने लातल्की का इजहार किया, पर मुकाबिल में प्रीशा थी, सो इसे हार माननी पड़ी। तौबा कैसी घुनी मिसनी अवाम है, कैसे अखियों के पीछे लड़ा रही थी, और मुझ मासूम को कुछ खबर ही ना हुई। प्रीशा ने मसनूई खफी से कहते हुए मस्कीन सी शक्ल बनाई थी। दोनों ने पल के पल एक दूसरे को देखा और फिर मुंह पर हाथ रखते हुए बेसाख्ता हंसती चली गई। और यूं प्रीशा सारा की रजामंदी लेते हुए पूरे इत्मीनान मान के साथ अगले दिन मलिक विलास मौजूद थी। चूंकि घर में कोई बड़ा नहीं था तो अब सारी जिम्मेदारी प्रीशा पर थी। सारा और प्रीशा की दोस्ती के अलावा कुछ बिजनेस के ताल्लुकात की बिना पर भी सारा के वालिदैन अजहान मलिक शरोज़ को जानते थे, इसलिए इस रिश्ते से खासे खुश और मुतमिन नजर आ रहे थे। चुनांचे तमाम बुजुर्गों की मौजूदगी में रिश्ता तय पाया गया, इसलिए झट मंगनी पट ब्याह की और अगले माह शादी होना करार पाएगी, जिसकी वजह से दोनों घरों में खुशियों की एक लहर दौड़ गई थी। प्रीशा न जाने कितनी देर इन यादों में गुम रहती जब शरोज़ की आवाज़ ने इसकी सोचों के इर्तिकाज़ को तोड़ा था। वो काफ़ी देर से इसी पोजीशन में लाउंज में खड़ी खिड़की से बाहर खड़ी लॉन में होने वाली तैयारी को बेध्यानी में देख रही थी। हाल में वापस आते ही इसने तमाम सोचों को झटक कर ऊपर शरोज़ के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, जो इसे कुछ न मिलने पर आवाज़ें लगा रहा था। लॉन से निकलते वक्त वो अपने वालिदैन की तस्वीर को मुस्कुरा कर देखना नहीं भूली थी। सारा का ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। वो खुद एक काबिल बिजनेसमैन की बेटी थी। सारा के वालिदैन की तलाक हो चुकी थी, क्योंकि सारा की वालिदा मगरबी माशरे की पली बड़ी खातून थी, जो कि अजहान के रंग और रूप में न ढल सकी। चुनांचे वो अपने दोनों बच्चे सारा और अरमान को अपने शौहर के पास छोड़कर इनसे तलाक लेकर वापस परदेश चली गई थी। असल में अजहान और सानी की ये पसंद की शादी थी, जो अजहान ने अपने बड़ों के खिलाफ जाकर की थी। इसी वजह से अजहान को अपने घर वालों से कता ताल्लुक होना पड़ा था। पर अब जिसकी खातिर उन्होंने सब कुछ छोड़ा था, आज वो ही उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। अजहान बुरी तरह से अंदरूनी खलफशार का शिकार हो गया था। अजहान के वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने सब कुछ भुलाकर सदे दिल से माफ़ कर दिया और अजहान को दोनों बच्चों समेत मलिक विलास ले आए थे। मलिक विलास में तैयारी अपना जोर पकड़ चुकी थी। मलिक के मारूफ डेकोरेटर्स की ज़ेर निगरानी में मलिक विलास के दीवार को सजाया जा रहा था। घर भर में जश्न का समा था, और क्यों ना होता भाई, आखिर को दो खुशियाँ इकट्ठी आ रही थी, एक सारा की शादी और दूसरी लाडले बेटे की वापसी। हर कोई बेहद मसरूर था। बस जो बात रंग में भंग का काम कर रही थी वो थी अरमान की गर्लफ्रेंड माया। ये वो हस्ती थी जिसकी वजह से सबका चहीता अरमान आज इनसे इतनी दूरी पर था। दरअसल पढ़ने की गर्ज से अमेरिका गए हुए अरमान की मुलाकात शोल्डर कट शहद रंग बालों वाली माया से हुई थी, जो काफ़ी हद तक अरमान की तबीयत से मुताबिकत रखती थी। चुनांचे जल्द ही ये दोस्ती पसंद में तब्दील हो चुकी थी, और पढ़ाई की गर्ज से आए हुए अरमान ने वहीं डेरे डाल लिए थे। अजहान को खबर हुई तो वो बेहद परेशान हुए थे, जबकि दादा साहब तो हत्ते से ही अखड़ गए थे। सब नहीं चाहते थे कि जो कुछ अजहान के साथ हुआ था वही अब अरमान के साथ भी हो, पर अरमान अपने मौक़िफ़ पर कायम था कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। खैर, अज़ान अब ये उँगली काटने से तो रहे, वो इनका इकलौता बेटा था। इसे मिलने वो सारा के साथ साल बाद चक्कर लगा लेते थे, और अगर कोई अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा था तो वो थे अरमान के अज़ीज़ चांद दोस्त, इनके दादा
ان کے دادا صاحب دونوں پارٹیاں اپنے موقف سے ایک انچ ہلنے کو تیار نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا تھا تعلقات کشیدگی اختیار کر چکے تھے اور اب اتنے سالوں بعد اپنی بہن کی شادی کا سن کر ارمان سب کچھ بالطاق رکھ کر پاکستان آ رہا تھا، پر وہ آنے سے پہلے سارا کو اعتماد میں لے چکا تھا۔ وہ مایا کی موجودگی میں حالات کو سنبھال لے۔ مایا تو سارا کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی، مگر پر اپنے بھائی کے منہ پیچھے وہ چپ تھی اور بالآخر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور ملک ویلاس کے پورچ میں ایک لینڈر کروز تیزی سے آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے اتر کر ارمان نے گہری سانس فضا میں خارج کی اور ایک طاہرانہ نظر لان پر ڈالی تھی، پھر دوسری طرف دروازے کے پاس کھڑے اپنوں پر جو اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکراتا ہوا مایا کے ہم قدم چلتا ہوا سب کی طرف آیا تھا۔ باہر کی فضاؤں نے اس کی گہری سی آنکھوں اور مغرور تنِ نقوس کو اور بھی رعنائی بخشی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اوپر سے تھا بھی جائیداد کا تنہا وارث۔ ایسے میں ہر لڑکی اس کے ساتھ کی تمنائی تھی اور انہی لڑکیوں میں سے مایا بھی شامل تھی، جو کہ ارمان کے ذاتی بزنس اور لائف اسٹائل سے متاثر تھی۔ وہ ایک مادہ پرست لڑکی تھی جس کو اذہان نے امریکہ میں ہوئی مایا سے پہلی ملاقات میں ہی بانپ لیا تھا۔ اس وقت وہ ارمان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، پر پاکستان واپسی پر اچھا خاصا سین ہو گیا تھا۔ ہر کسی نے اپنے طریقے سے سمجھانا چاہا پر تھا کہ وہی بات۔ وہ دلکشی سے مسکراتے مایا کے ہم قدم چلتا ہوا آیا اور بڑی عقیدت سے اس نے اپنی دادی جان کے آگے سر جھکایا تھا۔ دادی تو نہال ہی ہو گئی تھی، انہوں نے سر پر پیار کرتے ہوئے اس پر سے کئی نوٹ وارے تھے۔ دادی جان سے پیار لینے کے بعد وہ سیدھا اپنے باپ کے بغل گیز ہوا تھا، جہاں نے پوری گرم جوشی کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور پھر علیحدہ ہوتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سارا جو اپنے بھائی کے گلے لگ کر روئی تھی تو سب کو چپ کروانا مشکل پڑ گیا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی اپنے بھائی کے معاملے میں حساس اور جذباتی، اور کیا ساری بہنیں اپنے بھائی کے معاملے میں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ سارا سے ملنے کے بعد وہ ریحان اور سحر سے ملا تھا، جو کہ اذہان کے مرحوم چچا زاد بھائی کے بچے تھے۔ ریحان ارمان کا ہم عمر جبکہ سحر ان سے چند سال چھوٹی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد دادا صاحب نے انہیں اپنے پاس رکھا تھا اور ان کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کی تھی۔ میری اسمائی بڑی، میرا دوست کہاں ہے؟ جس جوش سے ارمان نے دادا صاحب کے بارے میں پوچھا تھا، ٹھیک اسی طرح ایک دم خاموشی بھی ہوئی تھی۔ ان کی عدم موجودگی میں ہی ان کی ناراضگی کا سب سے اہم ثبوت تھا۔ ماحول پر چھائی کثافت کو کم کرنے کے لیے کے گھر سے سارا نے ارمان کو مخاطب کیا تھا، ارے بھائی مایا سے تو ہم سب کو ملاؤ۔ اور پھر ارمان نے مایا کا تعارف سب سے کروایا۔ سب ارمان کی وجہ سے اس پر کٹی حسینہ سے ملے تھے، ورنہ تو وہ اس کو منہ لگانا کے بھی روا دوا نہیں تھے۔ اس کے بعد آرام کی گھر سے مایا کو گیسٹ روم میں لے جایا گیا، جبکہ ارمان دادا صاحب کو ملنے کی گھر سے ان کی لائبریری میں چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دن کے اس پہر میں وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہوں گے۔ جیسے ہی اس نے ملک ویلاس کی جدید طرز بنی لائبریری میں قدم رکھا، اپنی توقع کے عین مطابق انہیں مطالعہ میں ماہر پایا تھا۔ السلام علیکم، گلا کنکھارتے ہوئے ارمان نے بآواز بلند سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ارمان کے سر پر کے سلام کا سرسری سا جواب دے کر وہ اس کی سائر سے نکلتے چلے گئے۔ ارمان کئی لمحے غیر یقینی سے ان کرسی کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے دادا صاحب موجود تھے، اور پھر غصے سے مٹھیاں بیچ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اسے اپنے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ اتنے سالوں بعد بھی دادا صاحب ہنوز ناراضگی قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ان کے بہترین دوست ہیں۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے دوست کے ساتھ؟ اس نے منہ پھلائے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ ارمان دادا صاحب کے فیصلے پر پریکٹیکل ہونے کے بجائے جذباتی اور خود غرض ہو کر سوچ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس سب پر اپنے فیصلے مسلط کرنے چاہتے ہیں۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ ہر عورت اس کی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ضروری تو نہیں کہ جو اذہان کے ساتھ ہوا وہی ارمان کے ساتھ ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب خام خواہ کا وہم کر رہے ہیں، اس لیے وہ سب کا وہم دور کرنے کے لیے مایا کو پھسلا لایا تھا۔ پر یہاں تو مرغے کی وہی ایک ٹانگ تھی۔ خیر، جہاں سوچوں میں تضاد آ جائے وہاں ناراضگیاں اور سرمہریاں جنم لیتی ہیں۔ لائبریری سے ارمان کو منہ پھلائے باہر نکلتے ہوئے سارا نے دیکھ لیا تھا، اور اب وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے ارمان؟ سارا ضبط کرتے ہوئے دکھ سے بولی تھی۔ کیا ہے؟ ارمان جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ دراصل اس کے متعلق بات کر کے اپنی جان سے پیاری بہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتی یہ کیا ہے، پر جو بھی ہے کم از کم ختم ہو جانا چاہیے۔ دیکھو ارمان، اس طرح بڑوں کے فیصلے کے بغیر زندگی کے فیصلے خود نہیں کیے جا سکتے، خصوصاً تب جب مثال آپ کے سامنے ہو۔ تم جانتے بھی ہو بابا جان، دادا جان، دادی جان سب کتنے پریشان ہیں تمہیں لے کر، پر تم ہو کہ سارا ارمان کو فکر مندی سے سمجھا رہی تھی، پر ارمان کو مسلسل اپنی طرف مسکراتا دیکھ کر چڑ کے بولی تھی، اب کیا ہے؟ کیوں مسکرائے جا رہے ہو؟ سارا کے چڑھنے پر ارمان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی اس عادت کو میں نے کتنا مس کیا وہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس طرح پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں۔ ارمان نے شرارتاً کہا، اور بے ساختہ سارا نے اپنی انگلی سے چہرے کو جانتے ہوئے مصنوعی مغروریت سے کہا، بس کر دو، زیادہ بھی نہ
چھوڑا کرو، مجھے پتا ہے میری خوبصورتی سے جلتے ہو تم۔ خوش فہمی تو دیکھے محترمہ کی اللہ میری توبہ۔ ارمان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اسی انداز میں کہا تھا، خوش فہمی ہی ہے نا، غلط فہمی تو نہیں ہے نا، اور بدل کر زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کرو۔ سارا نے ارمان کا کان مروڑتے ہوئے اسے پیاس بھری ڈانٹ سے نوازا تھا۔ اپنی چوٹی پکڑ جانے پر وہ خسیانہ ہو کر ہنس پڑا تھا، کیونکہ وہ حقیقتاً بات کا رخ بڑی چالاکی سے بدل گیا تھا، جسے سارا نے بھانپ لیا تھا۔ اچھا نا، ریلیکس، میں کر لوں گا ہینڈل، ارمان نے غیر سنجیدگی سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، پر سارا کا ان کشیدہ حالات سے دل گھبرا اٹھا تھا، اس لیے ارمان کے غیر سنجیدہ رویے پر دب کر بولی تھی، کہیں کر ہی نہ لینا تم، جسے سنتے ہی ارمان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ واچ آؤٹ مسٹر سپر کول، کہیں کولنس کے چکر میں فولنس کا شکار نہ بن جانا، اور جتنے پر مارنے ہیں مار لو، آخر میں ہم نے تمہاری شادی وہیں کرنی ہے جہاں بابا جان کہیں گے۔ سارا نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے آخر میں وارننگ کے انداز میں کہا، اچھا بابا، بات کی بات میں دیکھی جائے گی، ابھی آرام کر لیں اور میں بھی تھوڑی کمر سیدھی کر لوں، شام میں مہندی کا فنکشن ہے۔ سارا کا لیکچر طوالت پکڑنے لگا تو ارمان گھبرا کر اٹھ گیا، اور سارا اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن گٹھا ہونا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں ملک ویلاس کی تیاریاں دیکھنے لائق تھیں۔ مہندی کا پنڈال لان میں سجایا گیا تھا، پورا ملک ویلاس برقی کنوں میں جگمگا رہا تھا، ہر طرف سے مہندی، ابٹن اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ ڈھولک کی دھاپ پر لڑکیاں رقص کر رہی تھیں، کالے رنگ کے شلوار قمیض پر نارنجی رنگ کا بلیزر پہنے، خوشبوؤں میں بسا نکھرا سا اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ دولہے والوں کا استقبال کرنے کے لیے اذلان کے ساتھ کھڑا تھا۔ انٹرس کے اطراف میں ڈھول والے ڈھول بجا رہے تھے، سامنے سے شیروز سفید کلف لگے شلوار قمیض میں برگنڈی رنگ کا بلیزر پہنے شہزادوں جیسی آن لی اپنی بہن کے ہمراہ پوری شان سے چلا آ رہا تھا۔ پریشا نے ہرے اور جامنی رنگ کے امتیاز کا لہنگا پہنا ہوا تھا، جو اس کی گوری رنگت پر بھی دمک رہا تھا۔ کانوں میں جھمکے اور ماتھا پٹی پہنے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹیاں بنائے، ان میں گجرا لگا کر ناگی کی طرح چھوڑا ہوا تھا، ہاتھ میں بڑا سا خوبصورت مہندی کا تھال پکڑے وہ شیروز اور دیگر دوست احباب کے ہمراہ آگے آ رہی تھی۔ وہ شاندار سے استقبال کے بعد شیروز ارمان اور اذان سے ملے، دادا صاحب اور دادی جان سے پیار لیا، اور پھر شیروز کو پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھا دیا گیا۔ پریشا سیدھا سارا کے کمرے میں گئی تھی، سارا سے ملنے کے بعد دوپٹے کی چھاؤں میں اسے لے جھولے تک آئی تھی، پھر بڑوں کی اجازت سے سارا کو پھولوں کے بنے تمام زیورات باری باری پہنائے گئے۔ سارا نے بوٹل گرین اور پیلے امتیاز کا لہنگا پہنا ہوا تھا، پھولوں کے زیورات نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیا تھا۔ جھولے کے قریب رنگ برنگے فلور کشن اور گاؤں تکیے ایک ترتیب سے لگائے گئے تھے، بڑوں کے لیے تخت پوش کا انتظام کیا تھا، پاس ہی پڑے کشن پر جھولے کے ساتھ پریشا بیٹھی تھی، جو تخت پوش پر بیٹھے اذان اور دادا صاحب سے باتیں کر رہی تھی۔ دادی جان ماسی خیرہ کو ہدایتیں دینے میں مصروف تھی، اور ارمان مایا کا تعارف سب سے کروا رہا تھا۔ مایا نے وائٹ کلر کی نفیس سی شرٹ اور پنٹلیوں تک آتی کیپری پہنی ہوئی تھی، وہ ایک ادا کے ساتھ ارمان کے ساتھ پھر رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کو یہ منظر ناگوار لگ رہا تھا، مگر وہ مسالتاً خاموش تھے۔ سب کو مصروف دیکھ کر شیروز سارا کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشی کر رہا تھا، جس پر سارا مسلسل مسکرائی جا رہی تھی، اور یہ منظر ارمان کی نظر سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا، چنانچہ وہ فوراً سے بیشتر ہاتھ دھمکا تھا۔ اوہو، بڑے راز و نیاز ہو رہے ہیں، ارمان نے دانت نکوسے ہوئے شرارت سے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چوٹی پکڑ جانے پر شیروز خسیانہ ہو کر ہنس پڑا تھا، اس کے پاس بیٹھی پریشا اور سب لوگ متوجہ ہو گئے تھے۔ تو پھر کیسی بات ہے، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ارمان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر خالصتاً زنانہ انداز میں کہا۔ تو کئی لوگ ان کے کہکے گونج اٹھے تھے، اس کے لیے آپ کا بھی گھوڑے چلنا لازمی ہے، اب کے شیروز نے بھی میدان میں آ کر کہا تھا۔ شیروز کے ترکی باترکی جواب دینے پر ارمان بھی محظوظ ہوا تھا۔ ریحان ویڈیوز کیمرہ لیے پاس ہی آ گیا تھا اور ویڈیوز بنانے لگا تھا۔ سحر جو مایا کو کمپنی دے رہی تھی، وہ بھی وہاں پر چلی آئی تھی۔ آپ نے بتایا بڑی تاخیر سے ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ ساتھ گھوڑی چڑھ جاتا۔ ارمان نے جھٹ معصومانہ شکل بنا کر کہا۔ ہاں تو اب کون سا دیر ہوگی، آ جاؤ میرے ساتھ ہی۔ شیروز نے بھی فراخ دلی سے آفر کی تھی۔ آ جاؤں؟ ارمان نے آگے کو جھکتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے رازداری سے پوچھا تھا۔ ہاں بھائی آ جاؤ۔ شیروز نے ایک بار پھر فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ساتھ ارمان کو بھی شادی کی آفر کی، مگر وہ ارمان کے لفظوں کی ضمانیت کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ شیروز کے کہنے کی دیر تھی کہ ارمان جھٹکے سے آگے بڑھا اور شیروز اور سارا کے درمیان جگہ بناتے ہوئے جھولے پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بیچارے اس اچانک افتاد پر ایک کونے میں لگ کر بیٹھ گئے تھے، ہر طرف ہوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ درمیان میں ارمان دونوں کے بازو میں اپنا بازو پسائے دانت نکال کر ہنس رہا تھا، اور سب ارمان کی اشارت کو سمجھ کر دل کھول کر ہنس دیے تھے۔ مجھے نہ بچپن سے ہی کباب میں ہڈی بننے کا بہت شوق ہے، ارمان نے بچوں کی طرح معصومی شکل بنا کر کہا۔ سین کے اور بھی دلچسپ ہو جانے پر پریشا بھی کھڑی ہو کر اپنے اسمارٹ فون سے ان تینوں کی تصاویر بنانے لگی۔ اسے اپنی بھابھی کا یہ
شوخ طبیعت بھائی اچھا لگا تھا، جس کی طبیعت میں زندگی تمام رنگ نظر آتے تھے۔ دادا صاحب بھی پہلو بدل کر مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ہو گیا نا شوق پورا؟ اب کی بار سارا کی دبی دبی آواز آئی تھی، جو بیچاری ایک طرف پھنس کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کی ایک بازو ابھی بھی ارمان کے بازو میں پھنسی ہوئی تھی۔ نا، ارمان نے مزے سے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا تھا، میرا ایک اور شوق ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ اس کی بار شہروز نے تجسس سے پوچھا۔ وہاں موجود حاضرین میں بھی تجسس پھیل گیا تھا۔ وہ شوق؟ ارمان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پہلے دائیں طرف بیٹھی سارا اور پھر بائیں طرف بیٹھے شہروز کو دیکھا، پھر پاؤں کو پیچھے کی طرف زور دے کر جھولا تیز کر دیا۔ سارا اور شہروز دونوں ہی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، دونوں کی بوکھلاہٹ کے مارے ہلکی ہلکی چیخیں نکل گئی، جبکہ ارمان بے ساختہ اونچے اونچے قہقہے لگاتا رہا۔ پریشا نے جھٹ سے یہ منظر اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین پر سیو کر لیا تھا۔ پھر ارمان نے دونوں پر رحم کھاتے ہوئے جھولا روکا تھا اور جھولے سے اتر کر کان پکڑ لیے تھے۔ ارمان کی اس ادا پر شہروز اور سارا دونوں ہی مسکرا اٹھے تھے۔ ارمان کی چھیڑ چھاڑ اور شرارتوں نے پوری محفل کو زعفران بنا دیا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے مہندی کی تمام رسومات شروع ہو گئی تھیں۔ بڑوں کے بعد جب پریشا آگے آئی تو سارا نے بڑی محبت سے مگر دھیمے لہجے میں ارمان اور پریشا کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا تھا۔ ارمان، یہ ہے پریشا، میری سہیلی بھی ہے، میری نند بھی، اور پری تمہیں تو پتہ لگ گیا ہوگا اس بندر کا۔ جی، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا بھابھی کے لاڈلے بھائی ہیں۔ پریشا نے مسکراتے ہوئے کچھ ہی منٹ پہلے ہوئی شرارتوں کی نسبت ارمان کو چھیڑا تھا۔ ارمان نے اس کی شرارت سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، شرارت سے مسکراتے ہوئے شوخی سے بولا تھا، اسے کہتے ہیں ہیرے کی پہچان، اور ایک آپ ہیں، اتنے اچھے خاصے بندے کو بندر سے ملا رہی تھے۔ ارمان شوخی سے بولتے سارا کے بندر کہنے والی بات پر احتجاج کرنا نہ بولا تھا، جواباً سب مسکرا دیے تھے۔ ویسے پریشا، یقین کریں، میری اور سارا آپی کی 45 منٹ کی گفتگو میں وہ صرف 15 منٹ میرے متعلق بات کرتی ہیں اور باقی کے 30 منٹ میں مجھ سے یہ باتیں کرتی ہیں، پری کو یہ کلر پسند ہے، میں نے اور پری نے مل کر کوکنگ کی، پری کو یہ پسند ہے، پری کو یہ نہیں پسند، اور کبھی کبھی تو مجھے آپ پر اپنی غالبانہ سہیلی کا گمان ہوتا ہے، اور جس دن آپ کے متعلق بات نہ ہو تو خواہ مخواہ کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ارمان نے بڑی صاف گوئی سے پریشا کو بتا رہا تھا، جس پر شہروز کا قہقہہ بے ساختہ تھا، اور یوں اپنے آپ کو موضوع گفتگو دیکھ کر پری چھپ سی گئی تھی۔ اس طرح ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ میں مہندی کی تقریب کا اختتام ہوا تھا۔ اگلے روز سب کو ہی ان دو جادوئی لفظوں کا انتظار تھا، قبول ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے خوشی خوشی مل رہا تھا۔ ایجاب و قبول کی رسم کے بعد سب بڑوں نے آگے بڑھ کر سارا کو پیار کیا تھا۔ آخر میں ارمان آگے ہوا اور اپنی بہن کو سال لگا لیا تھا۔ سال لگانے کی دیر تھی کہ سارا نے کب کے روکے ہوئے آنسوں کو بہنے دیا تھا۔ ایک خالصانہ جذباتی ماحول بن گیا تھا۔ سارا اپنی جدائی کے خیال کے تحت بھائی کے ساتھ لگی رو رہی تھی، اور ارمان بہت پیار سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ بہن کی جدائی کے خیال سے ارمان کی آنکھیں پھر سرخ ہو گئی تھیں، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے جھٹ شیڈز لگا لیے تھے۔ پری نے پڑھ کر دونوں کو الگ کیا۔ اس کے بعد سارا کے میک اپ کا ٹچ اپ کر کے اسے اسٹیج پر ارمان اور اذان کے ہمراہ لے جایا گیا۔ پری، میں کہہ رہی ہوں میں کچھ کر بیٹھوں گی، سارا نے دبی دبی آواز میں تل ملاتے ہوئے آہستگی سے کہا، جسے پری نے بمشکل سنا تھا۔ خیریت ہے؟ پری گھبرا کر آگے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کیسے خیر ہوگی اس مایا کے ہوتے ہوئے؟ سارا چل کے بولی تھی۔ کون مایا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اب کہ پری بھی جھنجھلائی تھی۔ سارا نے آنکھ کے اشاروں سے ارمان کی طرف اشارہ کیا، جس کے ساتھ مایا جوں کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ پھر پریشا کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ دادی جان کے اسٹیج پر آ جانے سے دھیان ایک دم بھٹ گیا تھا، کیونکہ وقت زیادہ ہو جانے پر وہ رخصتی کا کہنے آئی تھی۔ قرآن کے سائے میں سارا کو رخصت کروا کر احمد ہاؤس لایا گیا، جہاں باقی کی رسومات بھی بخیر و عافیت انجام پائی گئی تھی۔ اگلے دن ولیمہ بھی شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کیا گیا تھا، جہاں بہت سی نامور شخصیات موجود تھے۔ ولیمے کے بعد ارمان ایک ہفتے تک رکا تھا، پھر مایا کو ساتھ لیے واپس امریکہ چلا گیا۔ ارمان کی کوشش تو یہی تھی کہ وہ سب کو مایا کے سلسلے میں منا لے گا، مگر مایا تو دور کی بات ہے، ان کے درمیان تعلقات اور کشیدہ ہو گئے تھے۔ ارمان عجیب قسم کی اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ دادا صاحب کی ناراضگی کا اثر تھا یا سارا کی نصیحتوں کا کہ ارمان کے سوچنے کے انداز میں فرق آ گیا تھا؟ وہ اب ہر پہلو سے اپنے اور مایا کے تعلق کو جانچ رہا تھا، اور اب اس کو دادا صاحب اور سارا کی تمام باتیں پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہی تھی، اور آخرکار ارمان اور مایا کا بریک اپ ہو گیا۔ وہ ارمان سے زیادہ اس کے پیسے اور اسٹیٹس کو ترجیح دے رہی تھی۔ ارمان سخت فیڈ اپ ہو گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ جس لڑکی کی خاطر اس نے اپنے اتنے پیاروں کو خفا کیا تھا، وہی لڑکی مادہ پرست اور دھوکے باز نکلی تھی، کیونکہ صرف پیسے کی خاطر اس لڑکی کے اور بھی بہت سے مردوں کے ساتھ پیر چل رہے تھے۔ عمر کا تقاضا تھا کہ بیٹے کی پریشانی اذان دل کی عارضی میں مبتلا ہو گئی۔ ان کی اچانک طبیعت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر ہسپتال لایا گیا۔ ان دونوں
دنوں پریشے کی بھی ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تھی، وہ ایک قابل ڈاکٹر بن گئی تھی۔ اذہان کو بھی اسی اسپتال میں داخل کیا گیا جس اسپتال میں پریشا جاب کرتی تھی۔ سارا اور شہروز اپنی ہنیمون پر تھے۔ اس دوران پریشا نے ایک بیٹی بن کر دن رات اذہان کی خدمت کی تھی۔ ہنی مون سے واپسی پر باپ کو اس حالت میں دیکھ کر سارا کی ہمت جاتی رہی تھی۔ ارمان تو ویسے بھی اپنا بزنس باہر سے وائنڈ اپ کر چکا تھا۔ باپ کی بیماری کا سن کر وہ راتوں رات پاکستان پہنچا تھا اور ٹھیک اسی رات حالت بگڑنے پر اذہان کو دوبارہ ICU میں شفٹ کیا گیا۔ اذہان کو طبیعت کچھ سنبھلنے پر وہ ڈاکٹر کی اجازت سے باپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ بابا جان، ارمان نے دھیمے لہجے میں محبت سے بولتے ہوئے کہا۔ اذہان کے سر پر ہاتھ رکھا غنودگی میں جانتے ہوئے اذہان نے اپنے لاڈلے کی آواز سنی تو فوراً آنکھیں کھول دیے تھے۔ بیٹے کو دیکھ کر فوراً ان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ باپ کو اس طرح کمزور حالت میں دیکھ کر ارمان کا دل کٹ سا رہ گیا تھا۔ میرا شہزادہ آ گیا، اذہان نے محبت سے ہاتھ کو آگے کرتے ہوئے کہا جسے ارمان نے فوراً تھام لیا تھا۔ جی بابا جان، میں آ گیا ہوں، بلکہ اب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کے پاس، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ آپ اپنے اس نالائق بیٹے کے کان کھینچ سکیں۔ ارمان نے لہجے میں بشاشت بڑھتے ہوئے کہا۔ اذہان ہلکا سا مسکراتے ہوا پھر ارمان کو سارا اور شہروز کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر میں تینوں اذہان کے پاس موجود تھے۔ ارمان، میرے بچے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب پچھلی باتوں کو بھلا کر اپنی نئی زندگی پر توجہ دینا۔ میرے بھائی، یہ سب تم نے سنبھالنا ہے، مجھے اپنے شہزادے پر پورا بھروسہ ہے۔ اذہان دقتوں سے اپنی ساری توانائی جمع کر کے آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ بابا، یہ فاؤل ہے، آپ کا کام آپ خود کریں گے، کام چوری نہیں چلے گی۔ ارمان نے ضد کرتے ہوئے نم آنکھوں سے لہجے کو پرشوق کرتے ہوئے کہا۔ ارمان، میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تم پریشا سے شادی کر لو اور پچھلا سب بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ پریشا بہت نیک بچی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی، بس اپنے باپ کی آخری بات سمجھ لو۔ اذہان اپنی غیر ہوتی حالت کے ساتھ ارمان کو دیکھتے ہوئے بولے، جو اپنے باپ کو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ پریشا، کیا آپ جسے کہیں کہ میں اسے شادی کروں گا، مگر آئندہ یہ لفظ منہ سے مت نکالے گا، آخری سانس اور آخری بات والا۔ ارمان نے تقریباً خفگی سے کہا تو ارمان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شہروز سے مخاطب ہوئے تھے۔ شہروز، مجھے امید ہے تم میرے اس فیصلے کا مان رکھو گے۔ اذہان نے اکڑتی ہوئی سانسوں سمیت شہروز سے کہا تھا۔ جی بابا جان، آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اذہان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ محبت سے کہا۔ داماد کے یوں محبت سے مان رکھنے پر اذہان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میری بچی کا خیال رکھنا۔ سارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ان کو موت نے آن گھیرا تھا۔ کمرے میں سارا کی فلک شگاف چیخیں تھیں جو باپ کو پکار رہی تھی۔ ارمان بے یقینی کی کیفیت میں باپ کے ٹھنڈے ہوتے بے جان جسم کو دیکھ رہا تھا۔ غم سے نڈال تیور گرتی ہوئی سارا کو شہروز نے سنبھالا تھا۔ جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے دادا صاحب نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ پریشا کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے کمرے تک آئی تھی اور پھر اس پر شفقت سے سائے کو ہمیشہ کے لیے جاتا دیکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بہت ہی کم عرصے میں اسے بھی اذہان کے ساتھ انسیت ہو گئی تھی۔ وہ جب سے ہسپتال ایڈمٹ تھے، پریشا کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کہتے ہیں نا، موت اور مصیبت پوچھ کر نہیں آتی، اور ان سب پر وہ وقت آ چکا تھا۔ باپ کی تدفین کے بعد ارمان نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ دادی جان اور سارا نے اسے بہت سمجھایا وہ اکیلا نہ رہے، مگر ارمان اپنی ضد پر قائم رہا تھا، کیونکہ بقول ارمان کے وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ اس گھر میں رہے جہاں اس نے اپنے اتنے پیاروں کو خفا کیا تھا، اور ان سب سے ہٹ کر وہ کچھ وقت اکیلے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ ملک ویلا سے ملک ہاؤس میں شفٹ ہو چکا تھا، اس کے آفس سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ سب کے ساتھ رہتے ہوئے ایک تو وہ خود کو شرمندہ اور مضطرب محسوس کر رہا تھا، اور اس طرح وہ اپنے باپ کے بزنس کو پوری طور پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ یہاں اکیلے رہ کر وہ پوری طرح مصروف ہو کر ہر طرح کے احساسات سے نجات چاہتا تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران ارمان نے دن رات میں بغیر فرق کیے خوب محنت کی تھی اور بزنس کو خوب ترقیوں پر پہنچا دیا تھا۔ کیوں نہ کرتا اس میں ایک ذہین باپ کا خون جو تھا۔ سارا ارمان کی جمع شدہ پھیکی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، جو کہ صرف آفس سے گھر اور گھر سے آفس تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ہنسنا بھول گیا تھا، وہ رنگوں میں فرق بھولتا جا رہا تھا، اور نکھرا نکھرا سا شوق ارمان کہیں کھوئے کر رہ گیا تھا۔ اتنا سنجیدہ کچھ تھا نہیں جتنا اس نے اپنے سر پر حاوی کر لیا تھا۔ سارا چاہتی تھی کہ وہ اب شادی کر لے، کیونکہ ارمان کی پھیکی زندگی کا خود ساختہ ہول پری ہی توڑ سکتی تھی۔ ارمان پہلے تو آئیں بائیں شاہی کرتا رہا، پھر آخرکار سے سارا کے کہنے پر ہار ماننی پڑی، پر وہ اس شرط پر راضی ہوا کہ رخصتی کر کے پریشا کو ملک ویلاس کی بجائے ملک ہاؤس لایا جائے گا۔ سارا اس فیصلے پر تلملائی تو بہت پر یہ سوچ کر مان گئی کہ کہیں پھر سے انکار نہ کر دے۔ پھر ٹھیک 1 ماہ بعد پورے دھوم دھام سے وہ پریشا کو رخصت کروا کے ملک ہاؤس لے آیا تھا۔ شادی میں دادا سمیت سبھی افراد نے شرکت کی تھی۔ سب دل سے ارمان اور پریشا کے لیے خوش تھے، پر پوری شادی میں نہ تو ارمان ہمت کر پایا دادا صاحب سے بات کرنے کی، اور نہ ہی
दादा साहब ने इसे बुलाया था। रुखसती से पहले दादी जान परीक्षा के पास आई थी और इसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोली थी, बड़ी बेटी, बेटे अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा काम इस घर को जोड़े रखना है। ये जो दादा पोता एक दूसरे से अथरी बीवियों की तरह रूठे रूठे फिर रहे हैं, इनको मनाना है और समझाना है। ये काम आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे बिगड़े बिगड़े से अरमान को समझ लेना। ना जाने क्यों खुद पर जबर कर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम ये काम बखूबी अंजाम दोगी इंशाअल्लाह। परी ने ताबेदारी के साथ एक पुरज़म लहजे में कहा था। दादी जान अपनी बहू पर निहाल ही हो गई थी। परीक्षा को रुखसत करके मलिक हाउस में लाया गया था तो सारा ने अपनी इस नरम व नाजुक गुड़िया जैसी भाभी का भरपूर इस्तकबाल किया था। परीक्षा को नफासत से सजे इस खूबसूरत बेडरूम में बिठाया गया था। सारा का प्रोग्राम तो रात यहीं पर क्याम करने का था, मगर मलिक वेलास से आने वाले एक फ़ोन कॉल ने सारा को अपना प्रोग्राम तब्दील करने में मजबूर कर दिया। दरअसल दादा साहब दमे के मरीज़ थे और इनका इलाज लंदन के एक मशहूर अस्पताल से करवाया जा रहा था। हर 6 माह बाद वो अपना चेकअप करवाने लंदन जाया करते थे, मगर इस बार उन्होंने लापरवाही बरती थी और इन्हें चेकअप करवाए साल होने को आया था। तबीयत की खराबी के बायस उन्हें लंदन पाकिस्तान अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। अलबत्ता तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, मगर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मलिक वेलास पहुंचते ही सारा ने खैरियत की इतला दे दी थी। लॉन्च में टहलते अरमान की जान में जान आई थी। साहब ढीले पड़े तो इसे अंदर बैठी परीक्षा का ख्याल है, जो यकीनन कब से इसका इंतज़ार कर रही थी। अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए अरमान वो जो ज्वेलरी बॉक्स उठाना नहीं बोला था, जो सारा जाते हुए इसे कई नसीहतों समेत थमा गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाबों और कलियों की खुशबू महक इसके नथों से टकराई थी। कितनी अजीब बात थी कि वो कमरा जो इस अकेले का था, आज वो इस समेत किसी और की शराकत में भी था। बेड पर परीशे साकिन सर झुकाए इस तरह से बैठी थी कि इसके सर झुकाने से हल्का सा घूंघट भी निकल आया था। वो दरवाज़ा बंद करके आस्ते से चलता हुआ इसके पास आया था। अस्सलाम वालेकुम। कमरे की खामोशी तोड़ने में अरमान ने पहल की थी। परीक्षा की तरफ रुख करके एक पल के लिए इसे देखने की सही की थी, जहाँ से मदम सा सलाम का जवाब आया था, पर चेहरा नीचे होने के बायस इसे देखना सका था। गला खंगाकर फिर दोबारा बोला था, आप ही का फ़ोन आया था। अल्लाह के फजल से मलिक वेलाद में सब खैरियत से हैं, इंशाल्लाह कल आप ही आएंगी। अरमान ने परीक्षा को मताला करना ज़रूर समझा था, क्योंकि जैसे ही एकदम सूरत हाल बदली थी, सबसे ही परेशान थे। वैसे भी बात करने को कुछ था नहीं, तो उसने इसी बात को शुरुआत की थी। हालांकि इसके पास बातों की कमी नहीं थी, मगर वो अजीब से हालात में फंसा हुआ था। बड़ी awkward सिचुएशन थी। इसने जा बजा ऊपर नीचे देखते हुए मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझसे कुछ कहना है आपने? दुल्हन बनी परीक्षा को लगा से कुछ कह रहा है जो उसे सही से सुनाई नहीं दिया। तो उसने ज़रा चेहरा ऊपर करते हुए मध्यम आवाज़ में पूछा था। इस मतरन्नम आवाज़ पर अरमान ने रुख बदल कर इसकी तरफ देखा तो वो कुछ पल के लिए साकित ही रह गया था। अब सीन कुछ यूँ था कि अरमान का मुंह जो कुछ पहले बोलने के लिए खुला था, वो वैसे ही खुला का खुला रह गया। इसे बगी इसे ऐसे पाकीज़ा से उजले हुस्न पर ज़ुबान इसका साथ देने से इनकारी थी, तो नज़रों ने भी पलट जाने से इनकार कर दिया। अरमान को यकटक अपनी तरफ पाकर परीक्षा ने नर्वस होकर दोबारा सर झुका लिया था। परीक्षा के दोबारा सर झुकाने पर अरमान को अपनी कंडीशन का एहसास हुआ था और एक खुशी सी मुस्कुराहट इसके चेहरे का अता की थी। फिर अरमान ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बिना पूरी संजीदगी और ईमानदारी से बात शुरू की थी। मैं जानता हूँ ये वक्त नहीं है इन बातों का, लेकिन मैं आज पहली और आखिरी बार अपना या माज़ी का ज़िक्र कर रहा हूँ। माया और मेरे मुतालिक आपसे कुछ भी मख्फ़ी नहीं था। ये शादी भी ख़ासतन बाबा जान की ख्वाहिश पर हुई है, जबकि मैं अभी इस हक़ में नहीं था। वो बोलते-बोलते अचानक रुक गए। इसके तासुरात जाँचने लगा। बात के दरमियान अरमान के अचानक चुप होने पर परेशान ने आहिस्ता से दोबारा सर उठाकर इसकी जानिब देखा था, जैसे वो आगे भी कुछ जानना चाह रही हो। फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो फिर से बोला था, बात ये नहीं कि मैं आपसे शादी ना करता या आप मेरा इंतख़ाब ना होती। बात ये है कि मैं खुद को आपके लायक नहीं समझता। मैं अब खुद अपने हक़ में फ़ैसला करने से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को कुछ वक्त दें। बाकी मैं ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी मामले पर आपकी हक़ तलफ़ी नहीं करूँगा। अब से ये घर मेरे साथ-साथ आपका भी है और इस घर की हर चीज़ पर आपका पूरा हक़ है, मगर प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा ताउन कीजिएगा। सारी बात वाज़ेह करने पर वो प्रीशा को देखने लगा कि अब वो न जाने क्या रद्द-ए-अमल देगी। इट्स ऑलराइट, टेक योर टाइम। इस मामले में आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी इंशाअल्लाह। प्रीशा ने धीमे सुरों में अरमान की डार्स बंधाई तो वो तशक्कुर और मनमोहनियत से इसे देखने लगा। हवा में गहरी सांस खर्च करके वो जैसे ही खड़ा हुआ था, हाथ में पकड़े ज्वेलरी बॉक्स को देखकर दोबारा वहीं बैठ गया। ये आपकी रूनुमाई का तोहफ़ा। बॉक्स को खोल कर प्रीशा के आगे करते हुए कहा, जिसमें 2 खूबसूरत जुड़वां कंगन थे। बहुत शुक्रिया। प्रीशा ने हाथ बढ़ाकर बॉक्स थामते हुए कहा। बड़ी एहतियात से वो दोनों हाथों से अपना लहंगा संभालते हुए बेड से नीचे उतरी थी। प्रीशा के हिलने से कलाई में पड़े तमाम चूड़ियाँ एक मद्दम सास की तरह बज उठी थी। इन चूड़ियों की खनक ने अरमान को एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जो करने में मजबूर किया था। अरमान के देखते ही देखते इसके सामने आ खड़ी हुई थी। मुझे चेंज करना है, वॉशरूम किस तरफ है? अरमान के
इस्तिफ़ामिया अंदाज़ पर इसने मुद्दा बयान किया था, तो इसने हाथ के इशारे से वार्डरोब के साथ इशारा किया। वो सच करती चलती हुई रूम में दाखिल हुई थी। इसके एक-एक कदम के साथ अरमान की निगाह भी इस पर थी, क्योंकि सारे फंक्शन में वो गैर-दिमागी से बैठा रहता था कि इसने साथ बैठी परी पर भी निगाहें गलत तक न डाली थी। मगर अब यहाँ तो निगाह का असर था, या फिर प्रीशा के गैर मुतवक्का तौर पर सामने आए रद्द-ए-अमल के बायस जो सुकून वो महसूस कर रहा था, शायद इसका असर था। अब वो बड़ी फुर्सत से इसकी एक-एक हरकत नोट कर रहा था। प्रीशा जब वॉशरूम में दाखिल हुई तो उसकी नज़र दीवार गेट आईने पर पड़ी। वो बेसाख्ता चलती हुई आईने की तरफ आई थी। प्रीशा कितनी ही देर खुद को यूं ही देखती रही। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि एक अच्छे खासे सी होश इंसान का ईमान ख़राब कर दे। इसकी अपनी नज़रें खुद से नहीं हट रही थी। प्रीशा को अपनी बेसाख्ता हरकत पर अरमान का इसकी तरफ देखना याद आ गया था, पर साथ ही इन अनचाही होने का एहसास इसकी आंखों में नमी ले आया था। कितने ही आंसू इसके गालों से फिसले थे। फिर खुद पर काबू पाकर वो एक-एक करके अपनी झोली उतारती चली गई। हर उतरती चीज़ के साथ बातों और यादों का सिलसिला भी जारी था। प्रीशा बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि अरमान अभी तक खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे लगा कि अब तक वो सो गया होगा, क्योंकि इसे वॉशरूम में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग चुका था। ज्वेलरी उतार कर क्लीनर से चेहरा साफ करके कॉटन का सादा सा सूट पहनकर जब वो बाहर निकली तो तकरीबन घंटा ही हो गया था। मुझे लगा अब को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। प्रीशा को वॉशरूम से निकलता देख अरमान ने फ़ौरन कहा था, जिस पर प्रीशा ने नफ़ी में सर हिलाया था। लाइट्स ऑफ करके वो चुपचाप अपनी साइड पर जाकर लेट गई, जहाँ परी का ज़हन आइंदा आने वाले वक्त को लेकर मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ था। वहाँ अरमान भी प्रीशा के गैर मुतवक्का रवैये और आला ज़र्फ़ सिफ़्त के बारे में सोच रहा था, और यूं ही सोचते सोचते दोनों की आंख लग गई थी। अगली सुबह जब वो बाहर आई तो इसकी नज़र मुलाज़मत पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं इधर ही काम करती हूँ। आपको जो चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा। और लाइए जी, ये बर्तन क्यों पकड़े हैं? ये तो मेरा काम है जी। मुझे तो कल ही सारा बाजी ने आपके बारे में बताया था। सच बाजी, इतनी खुशी हुई सुन के कि अब इस घर में भी कोई औरत आई है। और बोलते बोलते एकदम रुकी, रौनक बनी प्रीशा को देखा। फिर तफ्तीश से अरमान से इस्तफ़सार करने लगी। साहब जी, बीबी जी बोल क्यों नहीं रही? फिर बगैर जवाब का इंतज़ार किए अपनी ही राय अकस के बोली थी, हाय मेरे अल्लाह, कहीं बीबी जी गूंगी तो नहीं है? फ़ातिमा सदमे की कैफियत में दोनों हाथ मुँह पर रखे रौनक बनी प्रीशा को देखते हुए बोली थी। अरमान, जो इसके फराटे भरती ज़ुबान से आजिज़ नज़र आ रहा था, एकदम ही बोल पड़ा, ला हौला वला कुव्वता खुदा को मानो फ़ातिमा, तुम्हारी बीबी जी गूंगी नहीं है, और तुम जो तोते की तरह शुरू हो जाती हो। अल्लाह के खाक बोलेगा, अभी ये बर्तन रखो किचन में और जाके चाय का पानी रखो, आप ही पहुँचने ही वाली होंगी। अरमान ने बड़े नरम लहजे में फ़ातिमा को तनबीह की। वो ऐसा ही था, हर एक से इस अंदाज़ में बात करता था कि अगले की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, हवा वो मुलाज़मीन ही क्यों ना हो। अरमान ने इसके इस तरह कहने पर जहाँ पर प्रीशा ने खुद को कंपोज़ किया था, वहाँ फ़ातिमा भी कसियानी होकर किचन की तरफ चल दी थी, और एक हल्की सी मुस्कुराहट ने दोनों के चेहरों का अहाता कर लिया था। आप ही का फ़ोन आया था, नाश्ता वो ले आई थी, आएंगी कुछ ही देर तक, आइए तब तक मैं आपको घर दिखा देता हूँ। अरमान ने प्रीशा को थोड़ी देर पहले सारा के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। फिर प्रीशा को साथ लिए पूरा घर दिखाया, जो कि खालिसन अरमान ने खुद डेकोरेट करवाया था। प्रीशा अरमान की पसंद से काफ़ी मुतासिर नज़र आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद फ़ातिमा ने सारा और शरोज़ के आने की इत्तला दी, तो वो लोग लाउंज में चले आए थे। भाई को देखते ही प्रीशा फ़ौरन भाई के साथ जा लगी थी। इसे एक रात में ही ऐसा लग रहा था जैसे कि सफ़र पर निकली हो। भाई से मिलने के बाद सारा से मिली तो सारा ने इसे गले लगाकर माजरत की थी, माफ़ करना मैं यहाँ रुक नहीं पाई, पर क्या करती, मलिक वाला जाना पड़ गया था। कोई बात नहीं भाभी, माफ़ी मांग कर शर्मिंदा मत कर। प्रीशा के इस तरह सादगी के साथ बोलने पर इससे भाभी पर खूब प्यार आया था। फ़ातिमा को नाश्ते की टेबल लगाने का बोलकर वो प्रीशा को बहाने से कमरे में ले आई, और फिर छूटते ही पूछने लगी, कल रात अरमान की क्या बात हुई तुमसे? क्या होनी थी? प्रीशा को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई थी। बनो मत, सीधे सीधे बताओ, कोई बात हुई है? इसने कुछ कहा था? बताओ अभी इसके कान खींच के तुम्हारे हाथी की तरह लंबे कर दूंगी। सारा के इसरार करते हुए एकदम तैश में आते हुए बोला था। प्रीशा बेसाख्ता कहका लगा के हंस पड़ी थी। अब अपनी तस्वुर की आंख से इतने खूबसूरत शख्स के लंबे कान देखकर इसकी बेसाख्ता से छूट गई थी, जैसे दरवाजे से अंदर दाखिल होते अरमान ने बखूबी सुना था। ऐसा मुतनम्म और बेरिया कहका तो माया का भी नहीं था। वो बेसाख्ता माया और प्रीशा का मुआवजा करने लगा था। फिर हर सोच कर जुटा के दोनों को नाश्ते के लिए बनाने
आया था। सारा जो परी के गैर संजीदा होने पर खाइफ नजर आ रही थी। अरमान को तो देखकर बिगड़ कर बोली, तुमसे 1 मिनट सब्र नहीं किया जाता, साथ ही पीछे आ गए हो। जब आ ही गए हो तो इधर आकर खड़े हो जाओ। हाँ भाई। परी सच सच बताओ कि क्या कहा है इस पागल ने तुम्हें? सारा किस तरह डायरेक्ट अरमान के सामने सवाल पूछने पर जहाँ परी गड़बड़ाई थी वहाँ अरमान भी सटपटा गया था। भला मुझे उन्होंने क्या कहना है? क्या हो गया भाभी? परी ने झपक कर कहा था। अच्छा, पर पुरसोच अंदाज में अच्छा कहने के बाद पहले अरमान और फिर परी को देखा और फिर बोली, क्योंकि तुम दोनों के चेहरे से कहीं से भी नहीं लग रहा कि न्यूली मैरिड कपल है। प्रीशे, तुम इस बंदर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और इसकी किसी उल्टी सीधी बात पर कतई अमल मत करना। मैं जानती हूँ ये इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, यानी कि हद ही होगी। मेरी बीवी को मेरे ही खिलाफ किया जा रहा है। सुबहान अल्लाह। अरमान ने दोनों हाथ को कान लगाते हुए दाद देने वाले अंदाज में कहा और लहजे में शोखी लाते हुए बात का मफहूम बदलना चाह रहा था। दोनों की नोक-झोंक पर प्रीशा ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए सर झुका लिया था। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, बल्कि अरमान ने कल से मेरी हर ज़रूरत का बहुत ख्याल रखा है। आपको ख़ामख़ाह गलतफ़हमी हो रही है। सारा का गर्मजोशी से हाथ दबाते हुए प्रीशा ने बताया, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सारा ने उठते वक्त अरमान को देखते हुए बोला, जो सारा को देखते हुए शरारतन मुस्कुरा रहा था। सारा अरमान की बड़ी बहन थी। इसने एक नज़र में ही प्रीशा का पुरसोच थका थका चेहरा भांप लिया था। इन दोनों के चेहरे पर वो अंदरूनी खुशी भी नहीं थी। सारा ने आइंदा आने वाले हालात के पेश नज़र बगैर देर के इस वक्त बाजू पर इसकी कोशिश बाज पर प्रेस की कोशिश की थी, जैसे दोनों बहुत खूबसूरती से डाल गए थे। फिर इसके बाद एक खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। हाँ भाई, वलीमे का फिर क्या प्रोग्राम है? चाय का सिप लेते हुए शरोज़ ने सारा से इस्तफ़ार किया था। बस दादा साहब की वापसी के बाद इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। सारा ने जवाब दिया था। चलो सही है, ये एक बार दादा साहब आ जाएं खैर खैरियत से, फिर वलीमे का फंक्शन करेंगे। शरोज़ ने प्यार से अपनी बहन को देखते हुए कहा, मुझे तो दादा साहब कह रहे थे कि मेरा बिल्कुल भी इंतज़ार ना किया जाए, कल ही वलीमा हो जाना चाहिए। मैंने तो कह दिया, जब तक आप नहीं आएंगे कोई फंक्शन नहीं होगा। आप बड़े हैं, आपका होना ज़रूरी है, और आपके बगैर हर फंक्शन अधूरा है हमारा। सारा ने कब रखते हुए तफसीलन बताया था। बिल्कुल सही कह रही हो। शरोज़ ने सर हिलाकर इसकी तायीद की थी। अरमान जो कुछ देर पहले शरोज़ से खुशगवारियत में हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था, बिल्कुल संजीदा हो चुका था। सारा और शरोज़ रात के खाने तक रुके थे और फिर अपने घर चले गए थे। शादी की वजह से अरमान ऑफिस नहीं जा रहा था। अब चूँकि वलीमा मुलतवी हो गया था, तो अरमान ने मौका गनीमत जानकर कल से ऑफिस ज्वाइन करने का सोचा था। कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा। फातिमा होगी आपके पास आपकी मदद के लिए। बाकी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। रात सोने से पहले अरमान ने प्रीशा को ऑफिस जाने के मुतालिक बताया था, और ये इनके दरमियान सारा और शरोज़ के जाने के बाद पहली गुफ्तगू थी। अरमान ने प्रीशा को ऑफिस जाने के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि वो सुबह नोख़ीज़ बंदा था। नमाज और जॉगिंग के बाद डायरेक्ट ऑफिस के लिए तैयार हो जाने के लिए निकल जाता था। इसके ख्याल में परी उठकर इसे ना देख कर घबरा जाएगी, क्योंकि फिर अरमान की शाम को वापसी होनी थी। आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं? प्रेषा ने रटे सवाल किया। 7 बजे। क्यों? तकिया दुरुस्त करते हुए अरमान के हाथ एक पल के लिए रुके थे। नहीं कुछ नहीं, वैसे ही प्रेषा ने जवाब दिया। ओके शबा खैर। बखैर, अरमान ने शाने उचकाते हुए कहा। लेट गया? शबा बखैर, प्रीशा ने साइड लैंप बंद करते हुए कहा। सुबह 5 बजे अरमान जॉगिंग के लिए निकल गया था। प्रीशा ने नमाज़ पढ़ी और सीधे किचन का रुख किया। फातिमा की मदद से नाश्ता तैयार किया और लॉन में टहलने के लिए आगे। ठीक 1 घंटे बाद अरमान वापस आया था। गेट से अंदर दाखिल होते अरमान के कदम ठिठक गए थे। प्रीशा लॉन में नंगे पाँव घास पर टहल रही थी। बालों की बनाई ढीली चुटिया में से हल्की हल्की लटें निकलकर इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। अरमान को देखते ही प्रीशा ने झट से सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम। प्रीशा ने पाँव में स्लीपर पहनते हुए कहा। वालेकुम सलाम। खैरियत? तो सुबह साहब उठ गई। सलाम का जवाब देते हुए अरमान अपनी हैरानगी पर काबू ना पा सका। मैं रोज़ ही इस वक्त नमाज के लिए उठती हूँ। प्रीशा ने एक आवारा लटको कान के पीछे करते हुए कहा। हाँ गुड। अरमान मुतासिर हुए बगैर न रह सका था। अब फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। प्रीशा ने नाश्ता लगाने की घर से अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, तो अरमान ने बोल उठा। नाश्ता? इतनी सुबह सुबह? अरमान हैरानगी में गलत बोल गया था। मेरा ख्याल है कि नाश्ता सुबह ही किया जाता है। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अरमान की हैरानगी से खस उठा रही थी। मेरा मतलब है कि मैं नाश्ते में बस कॉफ़ी लेता हूँ। फिर कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद बोला, आपने ऐसी इतनी ज़हमत की, मैं ऑफ़िस में ही कर लेता। अरमान ने कदर शर्मिंदा होते हुए कहा। ज़हमत कैसी? आप ऑफ़िस में तो करते हैं, आपसे घर में कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से फ्रेश हो जाएँ। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, सादा से अंदाज़ में कह कर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। अरमान ने एक पल के लिए अंदर की तरफ जाती इस परी पेकर को देखा था और फिर खुद भी अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो जब रूम से ऑफ़िस से जाने के लिए तैयार होकर आया, तब तक नाश्ता टेबल पर लग चुका था। प्रीशा ने बड़ा पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया था। नाश्ते में इतना सब देखकर वो एक बार फिर
متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ آج اس نے ایک عرصے بعد پیٹ بھر کے ناشتہ کیا تھا، ورنہ تو وہ ناشتے کے نام پر صرف کافی پیتا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ کوٹ پہنے پورچ تک آیا تھا تو پریشا فاطمہ کے ہاتھوں گاڑی میں لنچ رکھوا رہی تھی۔ پریشا کا ارمان کے لیے ہر کام میں انوالو ہونا ارمان کو ایک نئے احساسات سے روشناس کروا رہا تھا۔ حالانکہ آج پریشا کا گھر میں دوسرا دن تھا۔ عام دنوں کی طرح ناز نخرے اٹھوانے کی بجائے وہ ایسے کام کر رہی تھی جیسے برسوں سے یہی ہو۔ ارمان کو بساختہ اذان کی یاد آئی تھی، جن کے فیصلے کی بدولت آج جو پریشا کے ساتھ اس بندھن میں جڑا ہوا تھا وہ ارمان کی التجا پر بلا چوچرا مان بھی گیا تھا۔ اور یہی نہیں، اس نے سارا اور شروز کے سامنے بھی ارمان کا برہم رکھا تھا، اور اب صبح صبح اٹھ کر ارمان کے ہلکان ہو رہی تھی۔ ارمان کو شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی، ساتھ ساتھ وہ پریشا کی اچھائی کا بھی دل ہی دل میں شکر گزار ہوا تھا۔ یہ سب پریشا نے پلٹتے ہی ارمان کے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ لنچ ہے، گرم کروا لیجیے گا، پریشا نے فوراً کہا، پر ارمان کچھ کہنے لگا۔ پری نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا، آپ کو بے شک اس کی ضرورت نہ ہو، پر میری عادت ہے، بھائی کے لیے بھی تیار کرتی تھی، اس لیے اب سے آپ کے لیے بھی کروں گی۔ اور بازار کا کھانا کب تک کھائیں گے، اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے، پریشا جھٹ بولی جیسے ارمان کے متوقع جواب کے لیے تیار تھی۔ ویل تھینکس، ارمان گاڑی میں سامان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تھینکس کیسا، یہ تو میرا فرض ہے، پریشا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ فرض والی بات نے ارمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ ارمان کو اپنی طرف اس طرح مسکراتا دیکھ کر پریشا نے پزل ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں تو، مسکرا کر کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا تھا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ، پری نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ شٹرز لگاتے ہوئے وہ ایک داس سے چلتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ پرسوچ انداز میں گاڑی اسٹارٹ کی، پھر نہ جانے کیا سوچ کے اس کے لب بھرپور طریقے سے مسکرا اٹھے تھے۔ وہ گاڑی بیک کرتا ہوا دن سے بھگا لے گیا تھا، کیونکہ آج وہ ناشتے کے چکروں میں 15 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ السلام علیکم، کال آن کرتے ہی پری نے فوراً سلام کا جواب دیا۔ کال ارمان کی تھی۔ وعلیکم السلام، آج دادی جان سے آپ نے ملک ویلاس جانے کی بات کی تھی؟ ارمان نے جھٹ سے پوچھا۔ انداز کافی سنجیدہ تھا۔ جی، میری بات ہوئی تھی ان سے، وہ دادا جان اور آپ کے رویے سے کافی پریشان تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا۔ پریشا ناسمجھی سے اسے بتا رہی تھی، وہ اٹکی سے پوچھ کر۔ دوسری طرف سے ارمان کی غصے کی آواز گونجی تھی۔ پریشا پل بھر کو ارمان کے غصے سے گھبرا گئی تھی، پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اٹکتے ہوئے بولی تھی، ارمان وہ بہت رو رہی تھی، اس لیے میں نے۔ حد ہوتی ہے پریشا، آپ کو پوچھ لینا چاہیے تھا، آپ نے ایک بار بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، ارمان نے غصے سے پریشا کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا، اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ پریشا پریشان سی پری موبائل کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے غلطی کہاں پر کی ہے۔ ساری نیند بگ سے اٹھ گئی تھی۔ وہ اٹھی اور ٹیرس پر آ گئی، اور پھر واٹرنگ پوٹ سے ٹیرس پر لگے گملوں کو پانی دینے لگی۔ دراصل وہ فون پر ہوئی گفتگو کا اثر ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اسے پانی دیتے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ گیٹ پر ارمان کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ چونک پڑی۔ ٹیرس سے جھانک کر نیچے دیکھا تو واقعی ارمان پورچ میں گاڑی کھڑا کر رہا تھا۔ وہ ارمان کی غیر متوقع آمد پر گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً پورٹ رکھا اور نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی تو ارمان بے چینی کی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ پریشا کو آتا دیکھ کر وہ فوراً پھٹ پڑا تھا۔ آپ نے دادی جان سے کیوں کہا کہ ہم ملک ویلاس جائیں گے، جبکہ آپ دادا جان اور میرے تعلقات کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہیں؟ ایسے میں ان کو جھوٹی امید کیوں دلا رہی ہیں؟ ارمان کے اس انداز پر پریشا نے ہراساں ہو کر سر جھکا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان حالات میں بھی کس طرح کا ریئیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے آج تک شروز نے بھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ سوری، بٹ وہ دادا جان بہت پریشان تھی اور وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ آپ کے اور دادا جان کے تعلقات کو لے کر اس لیے بہت مایوس لگ رہی تھی۔ مجھے انہیں یوں روتا ہوا دیکھا نہیں گیا تو انہیں پر امید کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ارمان کو پہلی بار اس طرح غصے میں دیکھ کر پریشا کے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ پھر بھی اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے کافی ڈٹ کر اپنی وضاحت دی تھی۔ آپ کو جو صحیح لگا وہ آپ نے کیا، پر آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، میرا وہاں جانا بہت آسان ہے؟ جو کچھ بھی میں کر چکا ہوں، جتنا ان کا دل دکھا چکا ہوں، اس کے بعد وہ مجھے معاف کر دیں گی؟ قطعی نہیں، میں جس شرمندگی کا سامنا کر رہا ہوں اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ارمان غصے میں بولتا ہوا ایک دم رنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنے تاثرات چھپانے کے لیے اس نے ایک دم پیٹھ موڑ لی تھی۔ ایک پل کو آنکھیں بند کر کے ارمان نے اپنی رنجیدگی پر قابو پانا چاہا تھا۔ جیسے ہی اس پر قابو پایا تو غصہ دوبارہ اود آیا تھا۔ ارمان پھر مڑا اس کے سامنے کھڑا ہوتا، کتنا آسان ہے نا لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا، آپ نے ایک بار بھی مجھ سے مشورہ کرنا لازمی نہیں سمجھا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک ویلاس کی جانے کی خبر ایک منٹ سے پہلے ہر طرف پھیل چکی ہوگی۔ اب آپ ہی بتائیے میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا؟ جانتی تھی نا آپ سب کچھ، پھر کیوں میرے لیے یہ اذیت کھڑی کر دی آپ نے؟ ارمان غصے میں اس پر برس رہا تھا اور وہ مسلسل سر جھکائے ہاتھ میں سلسلتے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کے اس طرح چپ جانے پر ارمان چڑ سا گیا
था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरमान ने चंद कदमों का फैसला तय किया करते हुए तकरीबन झंझलाते हुए पड़ी की ट्रॉली को ऊपर करते हुए कहा, तो दग सा रह गया। आंसू ज़ब्त करने के चक्कर में प्रीशा का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। होंठों को दांतों से पूरी तरह कुचला था। वो सुर्ख हो चुके थे तो आंखें लबाब पानी से भरी हुई थी, जिनसे ना चाहते हुए भी आंसू फिसल कर गाल पर आ चुके थे। इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, वो तेज़ से मुड़ी और तकरीबन भागते हुए कमरे में बंद हो गई थी। वो ऑफिस में बैठा कुछ ज़रूरी फाइल चेक कर रहा था जब इसे सारा की कॉल आई थी। इस्लाम दुआ के बाद सारा ने छूटते ही इस्तग़फ़ार किया था। अरमान वाक़ई ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मलिक वेलास आने के लिए मान गए हो। सारा ने खुशी और हैरत में लजे अल्फाज में कहा था। एक मिनट, आपसे किसने कह दिया? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अरमान ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तुम्हारी मेरी बात हुई है दादी जान से। उन्होंने खुद बताया कि परीक्षा बता रही थी कि वो और अरमान जल्द ही मलिक वेलास आएंगे। सारा ने मुख्तसर फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह किया था। ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरमान ने संजीदगी से कहते हुए फ़ोन रख दिया और फिर कुछ सोचते हुए परीक्षा का नंबर डायल किया जो तीसरी या चौथी बेल पर उठा लिया गया। परीक्षा ने कन्फर्म करने के बाद इसने तकरीबन गुस्से से फ़ोन बंद किया था। एक तो वो आगे ही इन सब को लेकर बहुत अपसेट था और दूसरा अपनी गलती का इज़ाला करने के लिए कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। इस पर नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। अरमान ने कुछ देर तो बैठा ज़ब्त करता रहा, मगर जब ज़्यादा देर ज़ब्त ना कर पाया तो सीधा घर आकर सारा गुस्सा परीक्षा पर निकाल दिया। अरमान जो अपनी ज़ात के लिए गुस्सा शर्मिंदगी के जज्बात रखता था, वो इसी तरह बोल के निकल रहे थे। एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने अपने अंदर जमा की हुई सारी फ्रस्ट्रेशन एक आम सी बात पर परीक्षा पर निकाल दी। अरमान ने परीक्षा से माफ़ी मांगने ही वाला था कि वो तकरीबन भागते हुए कमरे में बंद हो गई। अब अरमान का ज़हन और भी तरह मुंतशिर हो चुका था। बार-बार इसके तसव्वुर में परीक्षा का आंसू से भीगा चेहरा आकर बेचैन कर रहा था। वो अपने मुंतशिर होते दिमाग के साथ स्टडी एरिया में आ गया था। राइटिंग टेबल पर कोने टिका के इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया था और अंगूठे की मदद से अपनी कटपटियाँ सराहने लगा। वो परीक्षा को ना चाहते हुए भी मुसलसल सोचे जा रहा था। इस तरह बैठे-बैठे अरमान की आँख लग गई थी। 8 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से अरमान की आँख खुली थी। फातिमा दरवाज़ा खोल के अंदर आई और अरमान को देखते हुए बोली थी, साहब जी खाना लग गया है, आ जाएँ। ठीक है, आ रहा हूँ। अरमान ने मुख्तसर कहा, कुछ सोचते हुए वापस जाती हुई फातिमा को पुकारा, अच्छा बात सुनो जी साहब। फातिमा रुक कर ताबेदारी से बोली, तुम्हारी बेगम साहिबा कहाँ है? अरमान ने परेशानी की बाबत से दरियाफ्त किया था। वो जी अपने कमरे में है। फातिमा चढ़ बोली थी, ठीक है उन्हें भी बुला लाओ। अरमान ने हुक्म दिया था, जी बेहतर। फातिमा ताबेदारी से कहते हुए चलती थी। तब तक अरमान फ्रेश होकर टेबल तक आया था। इतनी देर में फातिमा दोबारा आई थी, साहब जी बीबी जी कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है। फातिमा ने बताया, किचन की तरफ चली गई। अरमान पर सोच नज़रों से टेबल पर सजे खाने को देख रहा था। अचानक किसी अपनी भूख उड़ती हुई महसूस हुई थी। तो वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ इस सोच के तहत कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। कमरे के सामने ही पहुंचकर वो एक अजीब कशमकश का शिकार था। खैर हिम्मत करके इसने बड़ी आस्तिकी से दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। खैर कमरे में ज़ीरो पावर का बल्ब चल रहा था, जैसे पीछे वहाँ मौजूद ही नहीं हो। बाथरूम की लाइट भी बंद थी। इसने 1 मिनट रुककर कमरे का जायज़ा लिया। फिर कुछ सोचकर कमरे से मलिका टेरेस का दरवाज़ा खोला तो पीछे वहाँ पर मौजूद थी। चूल्हे से सर टिकाया आसमान की तरफ देखती हुई वो खुद से बेनियाज बैठी हुई थी। बालों की लटें इसके चेहरे के तरफ झूल रही थी। हल्की मतरन्नम आंखें और लाल नाक इसके मुसलसल रोने की चुगली खा रहे थे। अरमान ने गला खंगार कर परीक्षा को मतवज्जा करना चाहा, मगर वहाँ मतलक को कोई असर ना हुआ था। वो चंद कदमों का फासला तय करते हुए आस्की से झूले पर इसके साथ ही जाकर बैठा तो परीक्षा होश की दुनिया में वापस आई थी। अरमान को अपने साथ झूले पर बैठा देख इसने हैरानगी से आंखें फैल गई थी। अरमान ने इसकी आंखों में बगौर देखा था। परीक्षा ने सटपटाकर नज़रें चुरा ली थी। हल्की सी मुस्कुराहट अरमान के होंठों को कहा था कि ये हुई थी। कुछ पल के लिए खामोशी छाई रही, फिर अरमान ने इसकी खामोशी को तोड़ा था। आप डिनर के लिए नहीं आई? अरमान ने परीक्षा को देखते हुए पूछा था, जो बेचैनी से अपने हाथों को की उंगलियों को मसल रही थी और वो अरमान की मौजूदगी में बुरी तरह पजल हो जाती थी। हालांकि वो एक बाएतमाद और बुलंद हौसला लड़की थी, लेकिन वो इस मामले में खुद को बेबस महसूस करती थी। मुझे भूख नहीं है, पेशेंट रुख मोड़े बगैर आज़िज़ी से कहा। वही तो पूछ रहा हूँ क्यों? फातिमा बता रही थी कि आपने दोपहर में भी ठीक से खाना नहीं खाया। इसके पूछने पर भी वो सर झुकाए चेहरा मोड़े बैठी हुई थी। रही कुछ तौक़ुफ़ के बाद अरमान बोला था, अगर आप मेरी शाम वाली बात पर नाराज़ है तो आई एम रियली सॉरी। मैंने वाकई बहुत रूड बिहेव किया था, मगर सच में मैं खुद को
बेहद बेबस महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस बात का सारा गुस्सा आप पर निकालूँ। चलिए उठे, खाना खा लें। अरमान ने संजीदगी से माज़रत करते एकदम लहजे को खुशगवार बनाते हुए दोस्ताना अंदाज में बोला, तो प्रीशा ने बेसाख्ता नज़र उठाकर अरमान को देखकर उसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। कुछ कहने के लिए प्रीशा ने लबा की ही थे, तो अरमान को अपना जायज़ा लेते देख बंद कर दिए। आप चलें, मैं आती हूँ। अपने ज़ोर-ज़ोर से धड़कते दिल पर काबू पाते हुए प्रीशा ने घबराकर जल्दी से कहा। प्रीशा की नर्वसनेस अरमान से छुपी नहीं थी। एक दिल-आवेज़ मुस्कुराहट अरमान के लबों पर रेंग गई थी। अरमान के दिल की हालत बदली-बदली सी लग रही थी। वो खुद को प्रीशा को एकटक देखने से रोक नहीं पाया था, जबकि वो अच्छे से प्रीशा के नर्वसनेस को महसूस कर सकता था। निकाह के 3 बोल का असर था या फिर इसके देखने का अंदाज़ बदल गया था। बहरहाल जो भी था, इसे ये साफ दिल की लड़की अच्छी लगने लगी थी। बहुत कम अरसे में ही सही अरमान के सोचने का अंदाज़ प्रीशा को लेकर बदल रहा था। वेटिंग, अरमान ने कहा और डाइनिंग हॉल की जानिब कदम बढ़ा दिए। अरमान के जाते ही प्रीशा ने एक गहरा सांस हवा में खारिज किया और फिर जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल की जानिब चल दी, जहाँ अरमान खाने पर इसका इंतज़ार कर रहा था। वो बेड पर जड़ लेटी मुसलसल पुरसोच नज़रों से छत को घूर रही थी। इसकी सोचों का मरकज़ अरमान ही था। सारा ठीक कहती थी, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बज़ाहिर वो खुद को एक बहुत लापरवाह शख्स शो करता है, पर वो बहुत हसास है। कल जब प्रीशा ने अपने लिए अरमान के अंदर कंसर्न देखा था, वो इसे अंदर तक खामोश करवा गया था। किस तरह वो इसकी हर बात तहम्मुल से सुन रहा था, इसके गुनगुनाने पर इसे दाद दे रहा था, सबसे बढ़कर इसे इज़्ज़त देता था। कितना अच्छा लगता है जब आपकी कोई परवाह करे और आपके बगैर खाना भी ना खा सके। क्या वो मुझे पसंद करने लगे हैं? ये ख़्यालात ही प्रीशा के लबों को एक शर्मकी मुस्कान ने छू लिया था। प्रीशा ने बार-बार अरमान को अपनी तरफ देखते पाया था। कई बार तो वो प्रीशा के देखने पर नज़र चुरा लेता था और कई बार तो देखता ही रहता था, यहाँ तक कि प्रीशा को नज़र झुकाना पड़ जाती थी। जो भी था, इसे नज़रों की आँख मचोली अच्छी लगती थी। अगर इनके दरमियान मियाँ-बीवी वाली बेतकल्लफ़ी नहीं थी, तो पहले दिन वाली अजनबियत भी नहीं थी। रात 9 बजे अरमान की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। वो अपने कहे के मुताबिक आज मीटिंग के बायस देर से पहुंचा था। गाड़ी लॉक करते हुए उसने एक नज़र शरोज़ की गाड़ी पर डाली, फिर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। लाउंज में कदम रखते ही इसके कानों में प्रीशा का खिलखिलाता चेहरा टकराया था। शरोज़ की सारा के साथ होने वाली नोक-झोंक से महफूज हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अरमान ने सबको मतवज्जा करने के लिए सलाम किया था। वालेकुम सलाम। सबने एक ज़बान भरे गर्मजोशी से सलाम का जवाब दिया था और फिर खुद ही अपनी सरकत पर हँसते पड़े थे। लाउंज में मौजूद तीनों नफूस के फ्रेश मूड ने अरमान पर खासा खुशगवार असर डाला था। बड़े मूड में हैं आप सब? अरमान ने मुस्कुराते हुए बैग टेबल पर रखते हुए पूछा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आपकी प्यारी बहन हमारी क्लास से ली और मैं काफ़ी हल्का-फुल्का महसूस कर रहा हूँ। शरोज़ के शरारती अंदाज़ पर अरमान मुस्कुराए बगैर न रह सका था। चले बस हम टेबल सेट करने लगे हैं। अरमान जल्दी से फ्रेश होकर पहुँचे, सारा उजलत में बोलते हुए प्रीशा को लेकर किचन में चल दी थी। थोड़ी देर बाद अरमान ताज़ा-दम होकर डाइनिंग टेबल पर पहुँचा था, तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ टेबल पर सजाई हुई थी, जिसे देखकर अरमान हैरत का इज़हार किए बिना न रह सका। खैर है, इतना सब कुछ कौन खाएगा? आप दोनों खाएंगे, क्योंकि मैंने और परी ने बहुत मेहनत और खलूस के साथ बनाया है। सारा झट से बोली थी। अरमान, तुम्हें पता है ना, हम जब से यहाँ आए हैं, ये दोनों ख़वातीन मिलकर किचन में नई-नई डिशेज़ ट्राई कर रही हैं और अब इनका टेस्ट हम पर होने वाला है। रोज़ शाम से अब तक की कार्रवाई बड़े शरारत बड़े अंदाज में सुना रहा था। फिर तो आज अल्लाह ही खैर करे। अरमान ने बेसाख्ता कहने पर दोनों कहका लगाकर हंस पड़े थे। अच्छा बस अब जल्द से खाना खाकर बताएं कैसा बना है? सारा ने खाने के मुख्तलिफ डोंगे अरमान और शरोज़ के आगे रखते हुए कहा। सबने बारी-बारी हर चीज़ चखी थी और खूब सेठ होकर खाना खाया था। अरमान खाते वक्त वक्तन-फ़वक्तन प्रीशा को भी देख रहा था, जिसने पीच और ग्रे इम्तियाज का जदीद तराश का सूट पहन रखा था और बाल आगे को खोल रखे थे। ये रंग प्रीशा की रंगत पर बहुत दमक रहा था। वो शरोज़ की बातों पर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। वो सारा को तंग करने के लिए कह रहा था, जवाब में भी सारा को कोई करारा सा जवाब देती थी कि सभी हंस पड़ते थे। यूं ही एक खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। सुबह नाश्ते के बाद प्रीशा ने पहली फुर्सत में दादी जान को फ़ोन करके अपने और अरमान के मलिक विलास आने की इत्तला दी थी, क्योंकि ईमान ने कल ही इसे बताया था। वो इस वक्त लंदन एयरपोर्ट थी जब प्रीशा ने इनको ये खुशखबरी सुनाई थी। दादी जान के तो पाँव खुशी से ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इनका तो बस नहीं चल रहा था कि इसी वक्त उठकर पाकिस्तान पहुंच जाए। दादी जान ने प्रीशा को रेरो दुआ से नवाजते हुए फ़ोन रख दिया था। दादी जान के बाद प्रीशा ने सीधा फ़ोन सारा को करके इत्तला दी थी, जो कि दादा जान के
लंदन वापसी पर इनसे मिलने एक दिन पहले ही मलिक वेलास के लिए निकल चुकी थी और इस वक्त रास्ते में थी। प्रीशा, तुम सच कह रही हो? मैं गलत तो नहीं सुन रही? सारा ने खुशी और हैरानगी के मारे बेरब्त जुमलों में पूछा। जी भाभी, बिल्कुल सच है। अब हम कल मिल निकलेंगे मलिक वेलास के लिए। प्रीशा ने अपनी आमद के बारे में सारा भाभी को बताते यकीन दहानी करवाई तो वो खुशी के मारे रो पड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे तुम्हारा शुक्र अदा करूँ। तुम, सारा ने रोते हुए चुप करवाने की नाकाम कोशिश की, जिस पर शरोज ने सारा के हाथ से फ़ोन लेकर लाउड स्पीकर ऑन करते कहा, अरे भाई अच्छी, तुमने खुशी की खबर दी है। मेरी चहती हुई बीवी अब चक्को पैको रो रही है। शरोज इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था जब प्रीशा की कॉल आई थी। अरमान के वापस आने का सुनकर सारा हैरत और खुशी से रोने लगी थी तो शरोज घबरा गया, इसलिए इसने ड्राइविंग करते हुए हाथ से फ़ोन लेकर लाउड स्पीकर पर डाल दिया था। परी मेरी जान, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ नसीब करे। तुम एक टूटा हुआ ख़ानदान वापस में लाया है। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। बाबा जान की कितनी ख्वाहिश थी कि ये सच जो मांगूंगी मिलेगा। सारा ने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा, इनाम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक भतीजा या भतीजी दे दें। प्रीशा ने शाह से कहते हुए कहकर लगाकर मतवक्का रद्द-ए-अमल जान कर फ़ोन बंद कर दिया तो सारा और शरोज एकदम झपके के बेसाख्ता कह उठे। शरीर शारा शर्मा गई जबकि शरोज दबी हंस दिया था। फ़ोन रखने के बाद परीशा ने पहले बिखरा हुआ सामान समेटा, फातिमा के साथ मिलकर सफाई की और फिर पैकिंग में लगी। इसने आइंदा आने वाले दिनों के पेश नज़र बहुत अंदाजे से अपनी और अरमान की पैकिंग की हुई थी। वो शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल जा रही थी, वरना शादी से पहले तो वो सबसे मिल चुकी थी, लेकिन अब इन रिश्तों की नोयत और थी। तसल्ली से पैकिंग के बाद जब टाइम देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। भूख तो इसको वैसे ही नहीं थी, ऊपर से खाने का टाइम भी निकल रहा था, इसलिए मौसम की मुनासबत से परीशा ने चिकन पकौड़े के साथ इमली की चटनी और चिप्स तैयार कर ली थी। सुबह से ही मौसम अबरआलूद हो रहा था और बारिश हो रही थी। वो सब तैयार करके फारिग हुई थी कि भाई लॉन में हारून हुआ और अरमान की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। परीशा हाथ साफ करते हुए लॉन्च में ही टर्न देखा तो घड़ी दोपहर के 2 बजा रही थी। थोड़ी ही देर में अरमान ने मुलाजिम समेत दोनों हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग्स लिए अंदर आया था। शेरू बाबा, सामान यहाँ रख दे। अरमान ने मुलाजिम से इशारा करते हुए कहा तो मुलाजिम सामान रखकर वापस जा चुका था। अब खाली हाथ जाता अच्छा नहीं लगूंगा, वैसे भी इतनी देर बाद जा रहा हूँ, सोचा सबकी शॉपिंग कर लो। अरमान ने परीशा को अपनी तरफ वाली नज़र से देखता पाया तो अपने बैग से रखते हुए मसरूफियत से वजाहत दी थी, बहुत अच्छा किया आपने। परीशा ने खुश दिली से कहा, फिर कुछ तो कब के बाद देखते हुए बोली, खाना लगाऊं आपके लिए? शॉपिंग के चक्कर में लंच का ख्याल ही नहीं रहा और अब भूख नहीं है, बस एक कप चाय मिल जाए अच्छी सी। अरमान बोलते हुए जुमला अधूरा छोड़ा था, फ्रेश हो जाए, मैं बस अभी लाई। परीशा अरमान से कहते हुए वापस किचन में चल दी थी। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाकर और ट्रॉली में चाय के साथ पेश किए जाने वाले दीगर लवाजमात सेट करने लगे और फिर चाय तैयार करके वो ट्रॉली घसीटती हुई लॉन्च में आई तो अरमान ने साइड विंडो खोले खड़ा था, जहाँ से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पीछे अरमान को जिस हालत में छोड़ कर गई थी वो इसी हालत में खड़ा था, बस इसने कोट उतार कर सोफे की पुश्त पर डाल दिया था। चाय तैयार है। प्रीशा ने अरमान को आवाज़ दी तो मतवज्जा हुआ, जो अपने ही ख्यालात में महव खड़ा था। प्रीशा के बुलाने पर वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। धीरे धीरे चलता हुआ सोफे पर आग बैठा था। वाह, चिकन पकौड़े, तुम जानती हो मैं ये दिस इज़ नेक्स्ट इतने मिस किए अमेरिका में, और फिर जब यहाँ आया तो अपने ही मसलों में घिरा रहा। इन सब का वक्त नहीं मिला। अरमान ने लवाजमात से सजी टेबल देखी तो बशाशत से बताते हुए एकदम फीका पड़ गया था, जिस पर परीशा ने इसका ध्यान बटाने के लिए भाव उड़ा था। चाय का मग इसके आगे बढ़ा दिया था। सुकून मिल गया। अरमान ने चाय का सिप लेते हुए कहा, दरअसल शॉपिंग ने इसको इतना थका दिया था, चूँकि दोपहर का खाना अरमान ने भी गोल कर दिया था, इसलिए खूब डट के इसने चिप्स और चिकन पकौड़े से इंसाफ किया था। इस दौरान इसने परीशा से इधर उधर की हल्की फुल्की गुफ्तगू भी की थी। वो बेतकल्फ़ी से इसके साथ तकरीबन हर बात शेयर कर लेता था और वैसे भी एक अच्छी दोस्त की तरह ना सिर्फ इसकी बात सुनती थी बल्कि इज़हार राय भी देती थी। ओह नो, मैं कैसे भूल गया, अभी तो पैकिंग भी करनी है। अरमान को याद आया तो चाय पीते पीते कप रख कर एकदम खड़ा हो गया। भूल गया था कि अब इसकी मदद को एक अदद बीवी भी है। पैकिंग तो मैंने कर ली हुई है, बस आप एक नज़र देख लें, कुछ रह ना जाए। परीशा ने प्लेटेड ट्रॉली में रखते हुए कहा, रियली अमेजिंग। अरमान ने भुएं उचकाते हुए मुतासिर अंदाज में कहा, शायद इसे परीशा से इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी। परी परीशा ट्रॉली घसीटते हुए किचन की जाने मुड़ी तो सब अपने अकब में अरमान की गंभीर आवाज़ सुनाई दी थी। अरमान ने पहली बार परीशा को इसके निकनेम से बुलाया था। परीशा को आज से पहले अपना निकनेम इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज अरमान के बुलाने पर लगा था। वो अरमान की पुकार पर मुड़े बगैर गर्दन को हिलाकर हल्का सा दाएं जाने मोड़ कर खड़ी होगी, जैसे इसके कुछ कहने के मुंतज़िर होते हैं। अरमान ने पुरखलूस अंदाज में कहा, एनीथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ भी।
पीछे मुड़कर एक अपनायत बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए प्रीशा ने ट्रॉली घसीटते हुए किचन की जानिब कदम बढ़ा दिए। अरमान ने इतनी देर से इसकी आंखों के बदलते रंग और लहजे की अपनायत को पूरे दिल से महसूस किया था। इसे तो अव्वल रोज से ही इसके खलूस पर शक नहीं था, बस एक हद सी कायम थी दोनों के दरमियान। अरमान ने धीमे से मुस्कुराते हुए शॉपिंग बैग उठाकर कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब इन दोनों को मलिक वेदास के लिए निकलना था। गाड़ी में सारा सामान रखवा दिया गया था। गाड़ी अरमान ने खुद ड्राइव करनी थी। बैठने से पहले प्रीशा ने अच्छे से खुद को चादर से ढांप लिया था। दादी जान की ख्वाहिश थी कि वो इसी तरह सज सवर कर दूल्हा दुल्हन बनकर मलिक विलास में आए जो इन्होंने शादी पे जोड़ा पहना था। फ्रंट सीट पर बैठते ही अरमान ने किला पीछे सीट पर रखा था और ग्लासेस लगा लिए थे। धूप आंखों में पड़ने की वजह से जब प्रीशा ने भी ग्लासेस निकाल कर आंखों पर लगाए तो अरमान के साथ बैठी प्रीशा को गर्दन मोड़ कर देखा तो तौसीफी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, कूल। अरमान के प्रीशा पर यूँ कमेंट करने पर जहाँ प्रीशा बेसाख्ता हंसी थी, वहाँ अरमान भी इस वक्त बेसाख्ता कहका लगा कर हंस पड़ा था। दोनों रवायती दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हुए थे, पर इन ब्लैक शर्ट्स ने हल्का सा टच दे दिया था जिससे वो और भी दिलकश दिखाई दे रहे थे। अरमान ने मुस्कुराते हुए सर को हल्का सा नफी में हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ी ही देर में गाड़ी पूरी रवानगी के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। जल्द से मलिक विलास करीब आता जा रहा था। अरमान कुछ नर्वस दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे से साफ शर्मिंदगी महसूस की जा सकती थी। पसीने की नंदी बूंदें इसके माथे पर नमदार हुई थी। प्रीशा ने बगैर कुछ कहे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर अरमान की जानिब बढ़ा दिया तो अरमान ने नासमझी से प्रीशा की जानिब देखा, जिस पर प्रीशा ने खुद ही हाथ बढ़ा कर इसके माथे से पसीना साफ किया। और थैंक्स। अरमान ने प्रीशा के हाथ से टिश्यू लेकर दूसरी तरफ से भी पसीना साफ किया। पहली बार अरमान की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया था कि नर्वसनेस और शर्मिंदगी के मारे इसके ठंडे पसीने छूट रहे थे। एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा। प्रीशा ने स्टीयरिंग पर धरे अरमान के हाथ पर अपना हाथ का हल्का सा दबाव डालकर कहा। प्रीशा की तसल्ली पर अरमान ने हवा में गहरा सांस खारिज किया था। गाड़ी अब मलिक विलास में दाखिल हो चुकी थी। पुरुष के बाहर रेहान खड़ा था। अरमान को देखते ही इसने अंदर की जानिब हाँक लगाई थी, भाई और भाभी आ गए हैं। और देखते ही देखते सब होश में जमा हो गए थे। जब जैसे रेहान के एक नए आवाज़ के मुंतज़िर हों, सबको अपने लिए यूँ वालहाना अंदाज में इस्तकबाल के लिए खड़ा देख प्रीशा और अरमान ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की थी। दोनों अपने ग्लासेस उतार चुके थे। गाड़ी से उतरकर अरमान ने अपना गला पहना था, जबकि सारा ने आगे बढ़कर प्रीशा को कार से उतरने में मदद दी और फिर इसकी चादर उतारी थी। हैरानगी की बात तो ये थी कि मलिक विलास की फूलों से सजावट करवाई गई थी और तो वहाँ कैमरामैन भी मौजूद थे। यहाँ तक कि सब लोग ठीक तरह इसी तरह तैयार हुए थे जैसा शादी वाले दिन। सबने बहुत वालहाना अंदाज में दोनों का इस्तकबाल किया था। फोटोग्राफर सबके महल से खड़ा कर तस्वीर खींच रहा था। इस्तकबालिया के रस्म अदा हुई। साथ साथ ही दादी जान ने काले बकरों के सदके भी निकाले थे। दादी जान अरमान को खुद से लिपटा कर खूब रोई थी, जबकि सारा की आंखें बार बार तशक्कुर से भीग रही थी। दादा साहब के सिवा सभी लोग यहाँ मौजूद थे और वहाँ मौजूद हर शख्स बहुत गर्मजोशी से दोनों से मिला था। दादी जान तो अरमान पर और प्रीशा की बुलाए लेती नहीं थक रही थी। इस्तकबाल के बाद दोनों को अंदर लाया गया और फिर छोटी छोटी रस्में अदा की गई। साथ ही साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी जारी थी। प्रीशा किसी बात का शोबा तक ना था। अरमान को इतने शानदार सवाल और आला सर्फी की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। सबके मोहब्बत भरे रवैये ने अरमान को एक नई तक़वियत बख्शी थी। वो सब में घर घेरा खुद को फ्रेश और महफूज महसूस कर रहा था। इतनी देर अपनी नाअहली को और कोताही पर खुद को नए सिरे से कोस रहा था कि इतने में ताज साहब अपने कमरे से चलते हुए आए तो प्रीशा और अरमान एहतरामन खड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने बैग वक्त आहिस्तगी से सलाम किया। वालेकुम सलाम जीती रहो, खुश रहो, कैसा रहा सफ़र, कोई मुश्किल तो पेश नहीं है। ताज साहब ने अरमान को नज़रअंदाज करते हुए प्रीशा के सर पर हाथ रखा, इसे दुआ दी और सफ़र की बाबत पूछा। हंसी मजाक और शेर करते रेहान और सहर पीछे शराफत से एक की जगह पर टिक गए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र बहुत अच्छा रहा। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर कुछ तौसीफ के बाद पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत करम है, अब काफ़ी बेहतर है। अब तुम लोग भी प्रीशा आराम करने तो सफ़र से आए हो, थक गई होगी। अरमान इस दौरान प्रीशा के साथ खड़ा नहायत हसरत और खामोशी से दादा साहब को देख रहा था, जो अरमान को इस तरह नज़रअंदाज कर रहे थे गोया वो वहाँ मौजूद ही ना हो। थकन तो आपको देखते ही दूर होगी थी। आंखों में खफीफ सी नमी ली। अरमान ने ख्वाब सी कैफियत में दादा साहब को देखते हुए कहा, जिस पर प्रीशा से मुखातिब दादा जान ने बेसाख्ता अरमान की जानिब देखा था, फिर साथ ही नजरें फेर ली थी। हर तरफ खामोशी छाई थी, मानो जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। अभी दादा साहब प्रीशा से कुछ कहने लगे थे कि अरमान आगे बढ़ रहे दादा साहब के गले लग गया था। ये सब इतना अचानक हुआ कि दादा साहब खुद को समझ ही ना पाए कि हुआ क्या है, पर जैसे समझे अरमान से अलग होने लगे। पर अरमान तो किसी बच्चे की तरह इनके गले से चिमटा था। मिस यू बड़ी, तुम्हें बहुत मिस किया दोस्त, अरमान के धीमे सरगोशी में कहा और रास्ता से अलग हुआ। दादा साहब के चेहरे से इनके तासुरात का जायजा लगाना मुश्किल था। वो साकित खड़े थे। मैं कुछ देर के लिए कमरे में आराम करूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, दादा साहब ने जज्बात से आ रही लहजे में कहा। कमरे से चल दिए। इनकी चाल में ज़्यादा लड़खड़ाहट तो थकन महसूस की जा सकती थी। ये बात नहीं थी कि दादा साहब एक सख्त गिर शख्स थे, मगर वो एक नहज पुर
शफीक और नर्म दिल थे, बस अरमान से नाराज़गी की वजह से उन्होंने खुद पर वक्ती साख्ता खोल चढ़ा लिया था। चलो बच्चों, अरमान और प्रीशा को कमरे में ले जाओ। अब तुम दोनों भी जल्दी से चेंज करके फ्रेश हो जाओ तो मिलकर लंच करेंगे। माहौल पर छाई उदासी को ख़त्म करने के लिए दादी जान ने सारा और सहर को हदायत देने के साथ साथ प्रीशा और अरमान को ताकीद की थी। शरोज़ ने अरमान का गर्मजोशी से कंधा तो दबाया जैसे इसके इक़दाम पर इसे शाबाशी दी हो और आने वाले वक्त के लिए बेस्ट ऑफ लक विशेज़ दी थी, जिसके जवाब में अरमान भरपूर तरीके से मुस्कुराया था। फिर सारा, शरोज़, सहर और रेहान सब मिलकर अरमान और प्रीशा को अरमान के साथ का कमरे में छोड़ आए थे। रात देर सोने की वजह से सुबह सबकी आंख देर से खुली थी, इसलिए नाश्ते के फ़ौरन बाद सब नाश्ते शाम में होने वाली वलीमे की तकरीब के लिए तैयार होने चले गए थे। शाम 4 बजे प्रीशा को पार्लर ले जाया गया ताकि वक्त पर तैयार होकर होटल पहुंचाया जा सके। शहर की सबसे माहिर मेकअप आर्टिस्ट से प्रीशा को तैयार करवाया गया, जिसने प्रीशा के कुदरती हुस्न को और भी दो आतिशा बना दिया था। इस दौरान रेहान मलिक वेला से पार्लर से औरत तक गन-चक्कर बन चुका था। प्रीशा को तैयार करवा कर होटल के ब्राइडल रूम में बिठाया गया था। बस अब अरमान को बुलाया जा रहा था ताकि वो दोनों का फोटोशूट हो सके। अरमान तैयार होकर कब का होटल पहुंच चुका था और अब रेहान के साथ मिलकर सब इंतजामात का जायजा ले रहा था। सहर दादी जान और दादा जान के साथ मिलकर सब मेहमानों को रिसीव कर रही थी, जबकि सारा प्रीशा को ब्राइडल रूम में बिठाकर अरमान को ढूंढने के घर से बाहर आई थी। इसे शरोज़ और बाकी जानने वालों के साथ पाया तो वो सबको एक्सक्यूज़ करती इसे ब्राइडल रूम तक लाई थी। रूम में दाखिल होते ब्लैक थ्री पीस में मलबूस नफासत से बाल बनाए भरपूर मर्दाना वजाहत समेटे अरमान को देखकर जहाँ प्रीशा टटकी थी, वहीं लाइट पिंक और डल गोल्डन गरारे में मलबूस प्रीशा को देखकर अरमान भी मबहूत सा रह गया था। प्रीशा नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। ब्राइडल मेकअप ने इसके हुस्न को और भी निखार कर रख दिया था। सजी सवरी से शर्माई सीधा अरमान के दिल में उतर रही थी। एक फसूखेज़ लम्हा के दरमियान आ ठहरा, मगर ये कुछ ही लम्हों की बात थी, क्योंकि अगले ही लम्हे दोनों संभल चुके थे। सारा ने फटाफट दोनों का फोटो सेशन करवाया, फिर खासतन सारा की हिदायत पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे डिम लाइट्स और म्यूजिकल बैकग्राउंड के साथ रैंप पर वॉक करते हुए स्टेज तक आए थे। हर एक ने अरमान और प्रीशा की जोड़ी को सूरज चांद से तशबीह दी थी। दादी जान तो कितनी बारी दोनों का सदका निकाल चुकी थी। हर एक के चेहरे पर खुशी रखसा थी, हर कोई मुतमिन दिखाई दे रहा था। जब सब लोग डिनर के लिए मसरूफ़ हुए तो सारा, शहरोज़, रेहान और सहर दोनों के पास स्टेज पर आ चुके थे और एक सेल्फी लेने में मसरूफ़ था। इस दौरान अरमान को दोबारा कॉल्स आई थी, जो कि दोनों बार अरमान ने कट कर दी थी। सारा समेत सब ने अरमान की हरकत नोट की थी। अब तीसरी बार कॉल आई तो सारा ने तकरीबन झंझलाते हुए कहा, अरमान बस भी कर दो, उठा भी लो, किसका फ़ोन है वहाँ साहब। अरमान ने अभी इतना ही कहा था कि फ़ोन दोबारा बज उठा। अब के बार अरमान ने कॉल रिसीव करते हाल से महाराना अंदाज में कहा, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त गुस्से में है, लिहाजा कुछ देर बाद कोशिश कीजिए, और रख फ़ोन बंद कर दिया। अरमान के ऐसे बोलने पर जहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, वहीं प्रीशा की सवालिया नज़र पर सारा बोली थी, अरमान का बेस्ट फ्रेंड वहाज वलीमे में शिरकत नहीं कर सका, इसलिए अरमान इससे नाराज़ है। चौथी बार बेल बजने पर अरमान ने खामोशी से फ़ोन उठाया था, बस भी कर दे और कितना गुस्सा करेगा। दूसरी तरफ से वहाज की मुस्कुराती हुई आवाज़ गूंजी, जो अपने शिरकत न करने पर अरमान को मना रहा था। वैसे कोई बहुत ही अव्वल दर्जे के ज़लील, कमीने और फारिग किस्म के इंसान हो तुम। अरमान दबे दबे लहजे में फ़ोन पर मौजूद वहाज पर बरस रहा था। दूसरी तरफ से वहाज का फिर से कहकाया था और ढीठ भी। अरमान ने तिल मिला कर कहा, तुम पर ही क्या हूँ मेरे दोस्त। अब के वहाज ने भी हल्के फुल्के अंदाज में हिसाब बराबर किया था, मैंने परसों ही तुम्हें याद करवा दिया था कि अपने इकलौते दोस्त के वलीमे के लिए वक्त निकाल लेना। पर नहीं, अरमान ने शिकवा करते कहा, मैं क्या करूँ यार, कैसे इतनी जल्दी मैनेज करता, मैं कोई अरमान मलिक तो हूँ नहीं, ऊपर से तेरा कोई पता नहीं लगता कि कब मिजाज बदल जाए। वहाज अपने दफा में बोला था, बस करते सब तेरे ड्रामे हैं। अरमान आज इसकी सुनने के मूड में नहीं था। अच्छा, तुम जो अचानक मलिक विलास पहुँच गए, मैं तो इस काया पलट पर खुशी से सदमे में चला गया। ऐसा शौक लगा, ना खुशी है ना खुशी से कि बाय गॉड क्या बताऊँ। पहले एक मशरकी लड़के की तरह चुपचाप शादी कर वाली, और अब शादी के 1.5-2 हफ्तों बाद इंसान का बच्चा बनकर शराफत से लाइन पर आ गया हो ना हो। अरमान बाबू, तुम पर भाभी का जादू चल गया है, भला हो भाभी का, उन्होंने अभी कहाँ अपने नसीब ओढ़े हैं, अल्लाह इनको हिम्मत दे, आमीन। वहाज अपनी आदत से मजबूर ड्रामाई अंदाज में बोलना शुरू हुआ था, तभी बोलता चला गया, दरमियान में अरमान के लते भी लेटता रहा, बेटा अल्लाह से ना अपने लिए हिम्मत और ताकत की दुआ कर, क्योंकि आज वहाँ आकर जो हाल मैं तेरा करने वाला हूँ ना, एक तो तुम हर किस्म के शौक से बाहर आ जाओगे, और दूसरा तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि नसीब पूरना क्या होता है। अरमान ने करारे से जवाब पर सबकी हंसी छूट गई थी, क्योंकि अरमान फुल फॉर्म में लग रहा था अपने पुराने स्टाइल में। वहाज को तुर्की जवाब दे रहा था।
जो हुक्म सरकार का हूँ ते माफ़ी दे दे। और दूसरी तरफ हाज महफूज होते भला इस बारे में भी सोचेंगे। अरमान ने पुरसोर अंदाज में कहा, महज अपने भाई जैसे दोस्त को तंग करने जा रहा था, सिर्फ वो इससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता था। तुझे भाभी के अलावा कुछ सोचने की फुर्सत होगी तो सोचेगा ना। आज एक बार फिर शुरू हो गया था। कितनी बड़ी फिल्म है, तो चल बस सब अपने काम पर ध्यान दे। अल्लाह हाफिज़। अरमान ने चिपते हुए फ़ोन बंद कर दी, क्योंकि वो वहाज का शरारती लहजा पाम गया था। खैर जो भी था, ये बात तो 16 आने सच थी कि परीक्षा का जादू अव्वल रोज़ से चल गया था और अरमान इस जहन में कैद होकर रह गया था। पर वो बात अलग थी कि बस बात से खुद भी अनजान था। खैर इस तरह एक शानदार वलीमा तकरीब अपने अख्ताम पर पहुंची। फोटोशूट के अलावा दादा जान अरमान के पास नहीं आए थे और अरमान की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बड़े माहौल में कोई ऐसी बात हो जिससे बदमज़गी पैदा हो। दादा साहब तकरीब छोड़कर चले जाएं, इस ख्याल के तहत अरमान ने इनसे कुछ भी कहना मुनासिब ना समझा था। वलीमे के अगले रोज़ रवायत के मुताबिक परीक्षा की मीठा बनाने की रस्म थी। जहाँ मलिक वेलास के किचन में दोपहर के लिए लंच तैयार किया जा रहा था, वहीं परीक्षा मीठे की रस्म अदा करी थी। अब भी खीर को गाढ़ा होने में वक्त था, लिहाजा परीक्षा ने साथ में रसमलाई और डोनट्स भी तैयार कर लिए थे। थोड़ी देर में डाइनिंग हॉल में खाना लगा दिया गया। सबने मिलकर एक सा लंच किया था। फिर इसके साथ ही परीक्षा के हाथ का बना मीठा पेश किया गया, जिससे सब लोगों ने खूब सिर होकर खाया था। हर कोई बैग वक्त 3 स्वीट डिश देखकर परीक्षा की फुर्ती और जायके की दाद दे रहा था। सबसे ज़्यादा खुश तो दादा साहब थे। फिर अगले दिन सब ने पुराने वाले अरमान को नोटिस किया था। वो शौक और चंचल, वही हाजिर जवाबी, सबको बेतकल्फ़ी से बुलाना, दादी जान से लाड, सारा से अपनी पसंद के खाने की फरमाइश, रेहान के साथ फुटबॉल और सहर को तंग करना। अरमान दादा साहब को अकेला नहीं छोड़ रहा था। वो जहाँ जाते अरमान इनके सर पर पहुँच जाता। इसने कोई पिछली बात नहीं की थी। वो इस तरह बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादा साहब बगैर किसी तासुर के बस इसलिए दिए से अंदाज में हाँ या ना में जवाब देकर खामोशी से इसे सुने जाते। अरमान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। वो एक पल भी ताख़ीर नहीं करना चाहता था। इसीलिए शाम को डिनर के बाद दादा साहब चहलकदमी की घर से जब लॉन में गए तो वो भी इनके पीछे चला गया। कुछ देर खामोशी जारी, फिर आखिरकार अपनी हिम्मत मतलब जमा करते हुए बोला था, मेरी सॉरी दादाजान, मैंने आप सबका कहना ना मानकर बहुत गलत किया, पर यकीन करें मुझे बहुत जल्द इसका एहसास हो गया था। खुद को आप सबसे दूर रखकर मैंने वाकई गलत किया था, मगर मैं क्या करता। मैं अपनी नाफरमानी और बदतमीज़ी पर बेहद शर्मिंदा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सबका सामना करने की, मगर मैं जान गया हूँ असल खुशी साथ रहने में है और मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूँगा। मेरी ये तमाम गलतियों को बस पुश्त डालकर आप मुझे माफ़ कर दें। अरमान शर्मिंदा सा माफ़ी मांगते हुए अपनी सफाइयाँ दे रहा था। देर से ही अरमान आ गया था और दादा साहब भी चाहते थे कि अरमान खुद आगे बढ़कर न सिर्फ इनसे माफ़ी मांगे बल्कि इन्हें मनाए भी। और दादा साहब अरमान के बदले हुए रवैये और शर्मिंदगी को नोट कर चुके थे। और अगर तुम बाज ना आए तो सच कह रहा हूँ, तुम मुझसे बहुत मार खाओगे। फिर कुछ तवक़्फ़ुफ़ के बाद वो बोले थे, बाज़ औक़ात गलती का एहसास हो जाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अज़ाले के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। इससे दूर नहीं जाया जाता, बल्कि इनके पास रहकर इनका सद्भाव किया जाता है। दूर जाना का अक्लमंदी है। खुद भी तकलीफ़ में रहें, हमें भी तकलीफ़ में रखा। अब भी परीक्षा बीच में मुदाखलत ना करती तो तुम में हिम्मत ना होती। दादा साहब तो जैसे अरमान की पहल का इंतज़ार कर रहे थे, जवाबन बरहमी से इस पर बरस पड़े थे। मैं मानता हूँ मैं इस सब से भागने लगा। राह फ़िरार के तौर पर मैंने दूरी इख्तियार करी। परीक्षा ने ना सिर्फ मुझे राह दिखाई बल्कि मेरी हिम्मत भी बांधी थी। आपकी बात सच है, वो इस मसले में ना पड़ती तो मैं शायद हिम्मत ना कर पाता। अरमान ने ईमानदारी से अपना जवाब दिया था। ईमान लोन में बुझी कुर्सी पर बरजुमान दादा साहब ने आहिस्तगी से उठकर दोबारा से चहलकदमी की तो अरमान भी उनके साथ चहलकदमी करने लगा। कुछ देर दादा साहब दांस्ता तौर पर खामोश रहे। इसके बाद दोबारा से सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोले थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें कभी किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम जानते भी हो कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, मगर जब मैंने तुम्हें चीज़ों को सही करने की बजाय यूँ हौसला हारते और खुद से ही अंदाज़े लगाते देखा, तब काम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैंने सोच लिया था जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे पहल मैं भी नहीं करूँगा। अच्छा ना, अब तो छोड़िए ना नाराज़गी, आपको मनाते आता रह गया हूँ। रह गया है आपका अरमान के बेचारगी से कहने पर दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखकर बेसाख्ता कहकर लगाकर हंस पड़े। अरमान ने मिलने के लिए दोनों बाजू हुआ किया तो दादा साहब ने अब्लू का पट्टा कहते हुए इसे गले से लगाया था और दादा साहब से बगल केस होता अरमान लफ्ज़ पर लड़का, क्योंकि परीक्षा की बात लफ्ज़ पर लफ्ज़ सच साबित हुई थी। दादा साहब ने ना सिर्फ इसे माफ़ कर दिया था बल्कि अब्लू का पट्टा कहते हुए अरमान का साथ भी
लगाया था। अरमान ने तमानियत के साथ मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली थी और ये मंजर खड़ी खिड़की से दादी जान, सारा, प्रीशे और सहर और रेहान ने अपनी आंखों से देखा। तो सभी ने मुस्कुराकर सदक दिल से इनकी दायमी खुशियों के लिए दुआ की थी। सब जानते थे ये इन सब का कुछ होने जा रहा है। फिर शाम किसी ने दादा साहब और अरमान को डिस्टर्ब नहीं किया था और दादा पोता देर तक बातें करते रहे थे। अरमान ने सिर्फ इनके लिए खुद चाय बनाई थी, बल्कि इन्हें दवाइयाँ देकर वक्त पर सुला भी दिया था। एक दूसरे की संगत में ये 9 माह कैसे गुजरे किसी को पता ही ना चला। सारा ने अल्लाह के फजल करम से 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। सब कुछ ठीक हो गया था। एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम अरहम रखा गया, जबकि लड़की का नाम आयमा। और अब तमाम लोग अरहम और आयमा के अकीके पर अहमद हाउस में जमा थे। सारा तो 2 बच्चों को एक साथ संभालने पर अच्छा खासा बौखलाई हुई थी। एक को चुप करवाती तो दूसरा रोने लग जाता, और दूसरे को चुप करवाती तो पहला रोने लग जाता। ऐसे में प्रीशे और सहर बारी बारी दोनों बच्चों को संभाल रही थी, जबकि लड़के तो अरहम और आयमा को देखने की हद तक ही पास रहे थे। जब इन्हें पकड़ने का कहा जाता तो ये कहकर भाग जाते कि इतने नाजुक से तो हैं ना बाबा, ना हम नहीं पकड़ते, कहीं हमसे बाजू वगैरह ना निकल गई तो। अच्छा बच्चों, जब तुम्हारे होंगे ना तो पूछूंगी। सारा ने अरमान के ग्रेस पर इसे लताड़ा जो दूर से खड़ा बच्चों को प्यार कर रहा था। नाजिर ना, मैं इन पंगों में नहीं पड़ने वाला। सारा की बात पर अरमान बदल कर बोला तो वहाँ बैठी सारा प्रीशा भी इनकी जाने मतवज्जा हुई थी कि मुझे मेरा स्टेटस अपग्रेड करवाने का कोई इरादा नहीं है। आपका क्या मुझे चाचू बनने का कोई हक नहीं है? रेहान खासन ड्रामाई अंदाज में बोला तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शाबाश, तुम्हारा स्टेटस अपग्रेड करने के चक्कर में हम मारे जाएं। अरमान रेहान के सर पर हो गया था। बहुत अच्छे है तो हम मारेंगे ना क्या? सारा को अरमान की बात जरा ना भाई थी। मेरा मतलब है कि इन चक्करों में इंसान बाउंड हो जाता है, और वैसे भी अभी बहुत वक्त पड़ा है, तब तक क्यों ना लाइफ को एंजॉय किया जाए। अरमान ने गोया नाक से बुकी उड़ाई थी। सुन लो अपने मियाँ के नए ख्यालात। सारा ने अरमान की बात से गायब होते हुए परीक्षा को दरमियान में धकेला तो मुस्कुरा कर रह गई। तो मिसेस अरमान मलिक, शाम का क्या प्लान है आपका? ऑफिस से जाने से कबल अरमान पर जोर की तरह पुरजोश की तरह शोखियाँ सवार थी, इसलिए अब भी प्रेशर के कंधे पर बाजू का घेरा बनाते हुए इससे इस्तफार कर रहा था। दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया था। शाम की शाम को देखी जाएगी, अभी आप ऑफिस के लिए निकले हैं, बहुत देर हो रही है। प्रेशर ने अरमान से अपना आप छुड़वाते हुए दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, वैसे हद ही होगी, तुम वो पहली बीवी हो जो अपने खावन को ज़बरदस्ती ऑफिस जाने के लिए कह रही है। अरमान ने मसनूई रूठेपन से बोला था, अरे आप जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे ना? वैसे भी आज मैं काफ़ी मसरूफ़, इसलिए चलें आप निकलें ऑफिस के लिए, वरना मज़ीद लेट हो जाएगी। प्रीशा ने अरमान को बैग थमाते हुए लाउंज के दरवाजे से बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। लाउंज के शीशे के बनने स्लाइडिंग डोर के पास आ खड़ी हुई थी, जहाँ से बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अरमान की हालत पर महफूज होते मुसलसल सी जा रही थी, जबकि अरमान यूँ से घर बदर होने पर हका बका खड़ा था। हंस लो मिसेस अरमान वाली, मेरी हालत पर जितना हंसना है हंस लो। अब मैं भी तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद मुझे फ़ोन करके नहीं बुलाते हूँ। अल्लाह हाफिज़। अरमान खासन ड्रामाई अंदाज में धमकी देता गाड़ी भगा ले गया था, जबकि प्रीशा अरमान की हरकतों पर मुस्कुरा कर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी। अमूमन 7 बजे तक अरमान ऑफिस से वापस आ जाता था, मगर अब 9 बज रहे थे। अरमान का कोई अता पता नहीं था। ऐसा लगा किसी ज़रूरी मीटिंग में की वजह से लेट हो गए होंगे। जब इंतज़ार करते करते थक गई तो 10 बज जाए तो परिचय की सही मायनों में घबराहट थी, क्योंकि अमूमन वो इतना लेट नहीं होते थे, और अगर कभी हो भी जाते तो फ़ोन करके इत्तला दे देते थे। प्रीशा के जहन से ये बात गोल हो चुकी थी कि अरमान साहब इसकी कॉल के मुंतज़िर थे। बिलाखिर पर प्रीशा ने अरमान को फ़ोन किया, जो तीसरी पहल पर उठा लिया गया। अरमान कहाँ रह गए हैं आप? कितनी देर होगी, अभी तक घर नहीं आया? खैरियत है ना? अरमान के कॉल उठाने पर फिक्रमंदी पर प्रीशा ने फ़ौरन पूछा था, याद आ गया आपको मेरी बेगम साहबा? मैं भी ऑफिस में हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ। अरमान ने ड्रामे अंदाज में बात के अहतमाम पर मसरूफ़ पर जोर देते हुए कहा, अपनी ना आने वाली मसरूफियत की अहमियत जताई थी। ठीक है अरमान, आप कल कर लीजिएगा काम, अभी तो आ जाएं। देखिए ना कितनी रात हो गई है। प्रीशा का लहजा अनूस फिक्रमंद था। देखो अब तो मुझे बुला रही हो, मैं खुद से नहीं आ रहा, याद रखना ये बात, ठीक है ना? अरमान का लहजा जताता हुआ था, जी जी ठीक है, मैं याद रखूँगी, प्लीज़ मगर आप प्लीज़ आ जाएं। प्रीशा ने यकीन दहानी कर रही थी। लो आ गया जवाबन, अरमान ने कहा, मगर अब की आवाज़ बहुत करीब से आती महसूस हुई थी। प्रीशा ने मतहीर ज़दा होकर एकदम पलट कर देखा, जहाँ पर मज़े से अरमान दंदनाता हुआ सीढ़ियों से उतरता हुआ प्रीशा के हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन बंद किया था।
आप छत पर कैसे आए? परिचय की हैरानगी सवा थी। सीढ़ियों से बड़े मज़े से जवाब आया, मेरा मतलब आप छत पर, आप तो ऑफ़िस थे ना? क्या मतलब? वो हैरान परेशान सी बेरब्ता जुमले अदा करती आखिर में झुँझला कर बोली, मैं ना दरअसल 7 बजे ही आ गया था। गाड़ी घर के बाहर पार्क लिविंग रूम के दूसरे दरवाजे से होता हुआ चुपके से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया था। वहाँ बैठ के तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था और इतनी देर तक फ़ोर्टनाइट खेलता रहा। अरमान बड़े मज़े से अपनी कारस्तानी सुना रहा था। क्या आप इतनी देर से ऊपर थे? मतलब अब मैं क्या कहूँ आपको? आप इतनी देर से मेरी कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। प्रेशर अरमान के बचकानापन पर शिष्ट रही थी। हाँ ना, और क्या? अरमान दाँत कोसते हुए बड़े फ़ख्री अंदाज़ से इतराफ़ कर रहा था। आपको मज़ा आता है मुझे ना तंग करके? प्रेशर ने काबरू उचकाते हुए पूछा था। मज़ा नहीं, बहुत मज़ा आता है। अरमान का छटपट कहकर गूंजा था। प्रेशर की आदत से जितना ख़र्च उठाता इतना ही कम था। इसे प्रेशर को तंग करने में मज़ा बहुत आता था। आप ना बिल्कुल बच्चे हैं। प्रेशर अफ़सोस से सर हिलाकर बोली थी। तो अगर मैं बच्चा हूँ तो तुम तो बड़ी हो ना, तुम इस बच्चे की ज़िद पूरी कर दिया करो ना। अरमान ने एक झटके से प्रेशर को अपने बाजू के हल्के में लेते हुए कहा, साथ इसके गाल पर हल्की सी जसारत भी कर डाली। प्रेशर तो इसके अचानक रफ्तार पर बौखला गई थी। अरमान की शौकियाँ और शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और कुछ ऐसी ही शौकियाँ अरमान पर इस वक्त सवार हो रही थी। इससे पहले अरमान मज़ीद फैलता, वो अपना आप इसे छुड़वाकर फरार होने में कामयाब होगी, जबकि अरमान इसे पीछे से बातें देता, वार्निंग देता, इसके पीछे ही भागा था। कई रोज़ से प्रेशर की तबीयत नासाज रहने लगी थी, मगर इसने इस बात की भनक अरमान को नहीं लगने दी थी। मवादा वो कहीं परेशान ना हो जाए, जबकि वो खुद अपने मामले में बराबर लापरवाही बरत रही थी। नतीजा एक दिन अरमान के लिए किचन में चाय बनाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी थी। पानी पीने की गर्ज से जब अरमान किचन में आया तो प्रेशर को फर्श पर बेसुध पड़ा पाया। वो प्रेशर की बेहोशी और ज़र्द पड़ती रंगत से घबरा के से अस्पताल आया। प्रेशर को जब होश आया तो उसने खुद को एक प्राइवेट अस्पताल के कमरे में छत को तकते हुए पाया, जबकि पास पड़ी कुर्सी पर पुरजमान अरमान इसे होश में आते देख फौरन उसकी तरफ लिपटा था। इसके उठने की कोशिश नाकाम बनाई थी। क्या करी हो? लेटी रहो। अरमान ने इसे कंधे से थाम कर दोबारा लिटा दिया था। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरमान पर प्रेशर ने अरमान को तसल्ली देने के अंदाज में कहा, जो परेशान नजर आता है। इससे पहले वो कोई बात करती रही। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुई थी। कैसा महसूस कर रही हो प्रेशर? डॉक्टर ने प्रेशर का जायजा लेते हुए सवाल किया था। इस पहले से बेहतर महसूस करी, मगर सर हनूज भारी है। प्रेशर एक हाथ सर के को दबाते हुए जवाब दिया था। कितने दिनों से ऐसा महसूस कर रही हैं? डॉक्टर ने फिर दरियाफ्त किया था। 1 हफ्ते से। प्रेशर ने एक नज़र अरमान को देखकर झिझकते हुए कहा, जवाब दिया, क्योंकि अरमान परीक्षा की हालत से बिल्कुल बेखबर था और अरमान का मुतवक्का रद्द-ए-अमल सोचकर प्रेशर को भी इससे परेशानी हो रही थी। कुछ टेस्ट ही करवा ले, फिर रिपोर्ट्स चेक करवाने के लिए आइएगा। डॉक्टर प्रेशर को टेस्ट थमाकर चली गई थी, जबकि अरमान हैरत और अफसोस से खड़े प्रेशर को देख रहा था। प्रेशर अरमान को अपनी सफाई में कुछ कहने जा रही थी कि अरमान इसकी बात बीच में ही काट दी। तुम 1 हफ्ते से इस हालत में हो और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? अरमान का लहजा धीमा मगर अफसोस से भरा था। मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो जाए। प्रेशर शर्मिंदा से सर झुकाकर वजाहत दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस किस्म की बातें मुझसे छुपाओगी। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? अरमान के लहजे में दुख बोल रहा था। इसकी काबिल वाली बात पर प्रेशर इसकी तरफ देखा। इससे पहले वो अपनी सफाई देती हुए अरमान फ़ौरन बोल पड़ा, तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अरमान ये कहकर रुका नहीं था, बल्कि कमरे से निकल गया था। वो प्रेशर की सरगम पर दिल गिरफ्तार था और प्रेशर ये बात अच्छे से जानती थी। वो खुद को कंपोज करते हुए उठी और बाहर आ गई थी। अरमान इसका इंतजार कर रहा था। मतलूबा जगह से टेस्ट करवाने के बाद वो घर वापसी के लिए रवाना हो गया। रास्ते में प्रेशर ने अरमान से बात करने की कोशिश की, मगर लफ्ज़ों ने इसका साथ नहीं दिया। अरमान के संजीदा चेहरे को देखकर सारी हिम्मत जाती रही थी। अरमान प्लीज़ मुझसे खफ़ा मत हो, आपकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने तो बस इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो जाएंगे, वरना मेरा ऐसा भी इरादा नहीं था। सच में वो रात को जब कमरे में आई तो प्रीशा का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इसको अरमान की खामोशी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसलिए वो जल्द अज जल्द ये बात क्लियर करना चाहती थी। और अब ना चाहते हुए भी इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो बात करते हुए दोनों हाथ मुँह पे छुपा कर रोने लगी थी। अरमान ने सारी नाराज़गी भरा इसकी जानिब लपका, तो मेरी जान मुझे बता तो दिया होता। देखो ना, तुम्हारी इस तरह ना बताने पर मुझे पर ज़्यादा परेशानी हुई है, जिस तरह तुमने मुझे अपने मामले में लापरवाही बरती है। अल्लाह ना करे कोई बड़ी बात हो जाती तो। अरमान परेशे को मोहब्बत से साथ लगाते हुए मामले की बारीकी का साथ दिला रहा था।
सॉरी परीक्षा ने रोते हुए बस इतना ही कहा, अच्छा अब रोना मत बंद करो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। और रही बात नाराज़गी की, तो मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। अरमान ने नरमी से परीक्षा के आंसू पोंछते हुए कहा, जिसकी रोने की वजह से नाक से रुक पड़ गई थी। इसकी रोई हुई सूरत में वो इसे पहले से भी बढ़कर सीन लगी थी। अरमान का तो दिल इसे बेईमानी पर उकसा रहा था, मगर परीक्षा की हालत तबीयत का सोच कर अपनी ख्वाहिश दिल में दबा कर गहरी सांस भर कर रह गया। अच्छा अब तुम आराम करो, हम इकट्ठा चलेंगे रिपोर्ट लेने, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अरमान इसकी पेशानी पर मोहब्बत की मेहर मुस्बत करते हुए लाइट ऑफ करके लेट गया था। सारा दिन की थकावट और परेशानी की बाइस वो लेटे सो गया था, जबकि परीक्षा की आंखों से नींद को से दूर थी। दरअसल डॉक्टर ने परीक्षा को जो टेस्ट करवाने के लिए दिए थे, इनमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी था। परीक्षा खुद भी डॉक्टर थी और अपनी बदलती कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ थे। और जब डॉक्टर ने इसे टेस्ट करवाने के लिए कहा, तो इसे अपनी हालत के पेश नज़र यकीन हो गया था, मगर वो फिर भी रिपोर्ट्स के ज़रिए एक बार कंफर्म करना चाहती थी। मगर इन सब में परेशानी की बात ये थी कि अरमान इस कदम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। और अब प्रीशा नहीं चाहती थी कि अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएँ तो अरमान का क्या रद्द-अमल होगा। और इसी परेशानी के आलम में वो रात भर सो भी ना सकी थी। हत्ता कि परेशानी ये थी कि तहरीर सुबह नाश्ते के वक्त इसके चेहरे पर रकम थी, जिसे अरमान ने भी फ़ौरन भांप लिया था। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, देखना सब ठीक होगा। तुम ऐसे ही इतना परेशान हो रही हो, मैं शाम में जल्दी आ जाऊँगा, फिर इकट्ठे रिपोर्ट्स लेने चलेंगे। अरमान प्रीशा को तसल्लियाँ देता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि प्रीशा अरमान के ऑफिस से निकलने के फ़ौरन बाद ही डॉक्टर ड्राइवर के साथ अस्पताल चली गई। वो बहुत बेचैन थी, इसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। वो चाहती थी कि अरमान से पहले इसे रिजल्ट का पता चल जाए, और वो रिपोर्ट्स लेकर सीधा घर आई थी। खैरियत है प्रीशा, इतना अंधेरा किया हुआ है। फातिमा बता रही थी कि तुम सुबह से अंदर हो। वो जो जल्दी अस्पताल जाने की घर से आया था, फातिमा के बताने पर कमरे में आया। कमरे की लाइट ऑन करते ही अरमान ने प्रीशा से सवाल किया। लहजे में वाज़ह फ़िक्रमंदी थी, जबकि प्रीशा अनोज इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। मैं खिड़की की जानिब रुक के खड़ी थी, इसे एक ही पोजीशन में खामोश खड़ा देख अरमान ने दोबारा सवाल किया था, तुम मेरे बगैर ही रिपोर्ट्स लेने चली गई। वो बातें करता हुआ आसिया से चलता हुआ इसके करीब आया था, तो परीक्षा की फ़ाक़ती रंगत पर इसका जुमला अधूरा ही रह गया। परी, तुम ठीक हो ना? अरमान के चेहरे पर फ़िक्रमंदी के वाज़ह आसार थे। अरमान घबराहट के मारे परीक्षा के चेहरे से मुँह से बेरब्त जुमले अदा हो रहे थे। हाँ परी, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? अरमान, वो मेरी रिपोर्ट परेशानी के आलम में इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरमान पर परीक्षा की हिम्मत बांधी थी, क्योंकि इसकी फ़ाक़ती रंगत, बेरब्त जुमले और घबराहट ने अरमान को अंदर से दहला दिया था। पर अब मुझे डर लग रहा है, खुदा रहा, कुछ तो बोलो। ऐसा करो, यहाँ बैठो और पानी पियो। अरमान ने दोनों शानों से थाम कर बिठाया। साइड टेबल से गिलास उठा कर इसके आगे किया, जिसे वो थाम कर एक ही सांस में ख़त्म कर गया था। अरमान परीक्षा की घबराहट पर दंग रह गया था, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत बांधते हुए अरमान ने एक बार फिर रिपोर्ट्स के बाबत दरियाफ्त किया था। देखो मैं तुम्हारे साथ, मुझे बताओ क्या हुआ है। अरमान, जो हमने कल टेस्ट करवाए थे ना, वो प्रेगनेंसी टेस्ट थे। इसके बाद दोनों के दरमियान शीशा आ गई। अरमान इसके बोलने का मुंतज़िर था, जबकि वो एक नज़र अरमान के संजीदा सूरत खुद को कंपोज करते हुए दोबारा गोया, और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसका मतलब मैं उम्मीद से हूँ। क्या क्या वाक़ई? अरमान की हैरत से बात थी। इसने जैसे परीक्षा को थाम के इसकी बात की तस्दीक चाही, तो पहले ही घबराई हुई थी। परीक्षा बिला आखिर हो पड़ी, तुम सच कह रही हो ना? एक बार फिर तस्दीक चाहिए थी। अरमान की यूँ संजीदगी से इस्तफ़ा करने पर परीक्षा के रोने में शिद्दत में मज़ीद इज़ाफ़ा होता, और वह मुँह पर हाथ रख के रोती चली गई थी। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अरमान पर तो शादी लड़की कैफ़ियत तारी हो चुकी है, और वो तो खुशी से दीवाना हुए जा रहा है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, पागल लड़की? अरमान ने खुशी से खिलखिलाते हुए इसके सर पर हल्की सी चपेट रसीद की, तो रोना धोना भूल कर अरमान को हैरत से देखने लगी। तो क्या आप खुश हैं? ऑफ़ कोर्स मेरी जान, मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि बेहद खुश हूँ, लेकिन तुम्हें देख कर ऐसा नहीं लग रहा। अरमान ने परीक्षा के रोने पर चोट की, तो जल्द से आंसू पोंछते हुए फिर से बोली, नहीं अरमान, मैं तो बहुत खुश हूँ, मगर आप तो इन सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ना थे ना? बिलाखिर प्रीशा का डर इसकी ज़ुबान पर आया, तो अरमान ने नासमझी से इसकी तरफ देखा, फिर संजीदगी से इस्तफ़ार किया कि हमारे दरमियान इस मुतल्लिक़ कोई बात हुई नहीं। तो वो दो लफ्ज़ी जवाब आया, तो फिर तुमने कैसे सोचा कि मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था? अरमान ने कहा उचकाते हुए प्रीशा से बाज़ प्रेस किया, आपने तो इस दिन अरहम और आइमा के हक़ीक़े पर बोला था कि हम इन पंगों में नहीं पड़ने वाले। प्रीशा ने इस हक़ीक़े वाली बात का हवाला दिया, तो एक मिनट के लिए खामोशी सा हो गया। इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि इसकी कही ये छोटी सी बात यूँ प्रीशा के ज़हन में अटक जाएगी। वो तो मैंने ऐसे ही शुगल में कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने दिल पर ही ले लोगी। हाँ ये बात सच है, मुझे बच्चे की वजह से एक जगह बाउंड होने से डर लगता है, पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं हमारी फैमिली नहीं चाहता। इंशाअल्लाह तुम मेरा साथ दोगी तो ज़िंदगी के नए बाब में मैं तुम्हारे संग चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाऊँगा।
ارمان نے پریشے کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے اس کے تمام تر خدشات کی نفی کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ پریشے افسردگی سے مسکراتے بڑے دل سے بولی تھی، جو ارمان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دفتر اس کے ہونٹ سکڑے، نظریں جھکی اور کچھ ہی دیر سوچنے کے بعد وہ گہرا سانس لیتا دھیمی آواز میں گیا، واش بابا جان ہوتے تو کتنے خوش ہوتے نا۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد دوبارہ بولا، میرا دل کرتا ہے کہ وہ کہیں سے واپس آ جائیں، میں ان کے ساتھ لگوں اور ان کو بتاؤں میں کتنا خوش ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اگر بابا جان کے فیصلے پر سر نہ جھکاتا تو شاید آج اتنا خوش مطمئن کبھی نہ ہوتا جتنا کہ آج ہوں۔ صرف ان کے صحیح انتخاب اور دعاؤں کی بدولت آج میں اتنا خوش ہوں۔ تم بتاؤ میں کیسے ان کا شکر ادا کروں، کیسے انہیں یہ بتاؤں کہ ان کا ارمان اب خود بابا بننے والا ہے۔ وہ پریشے کا ہاتھ تھامے افسردہ اپنا دل کی بات کہہ رہا تھا۔ پریشے کو اس وقت کسی وجہ سے کم نہیں لگا۔ دراصل موقع کچھ ایسا خوشی کا تھا کہ اسے اپنے بارے کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ قدرتی سی بات تھی کہ جب انسان بہت زیادہ خوش یا اداس ہوتا ہے تو اسے اپنے قریبی رشتے کی بہت یاد آتی ہے، خاص طور پر وہ جو ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکے ہوتے ہیں۔ ارمان کے جذبات بھی کچھ اسی طرح کے ہو رہے تھے، جیسے والدین کی دعائیں بچوں کو لگتی ہیں نا، ٹھیک اسی طرح بچوں کی دعائیں والدین کو لگتی ہیں، پھر چاہے وہ حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ آپ ہر نماز میں ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کریں۔ والدین کے لیے ان سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، ان کی اولاد ان کے پیچھے ان کے لیے دعا گو ہے۔ پریشے نے منہ سے نکلا ہر لفظ ارمان کے لیے باعث راحت تھا۔ ارمان نے بے ساختہ دل میں رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ رب نے کیسے اسے اپنے والد کے ایک فیصلے پر سر جھکانے کے عوض اتنا خوبصورت جیون ساتھی عطا کیا تھا۔ وہ جتنا اپنے والد کے اس فیصلے پر شاداب و فرحان ہوتا کم تھا۔ مجھے میری زندگی کا سب سے قیمتی اور خوبصورت تحفہ دینے کا شکریہ، ارمان نے محبت سے کہتے ہوئے نہایت عقیدت سے پریشے کے ماتھے پر اپنے محبت کی مہر ثابت کی تو وہ افسردگی سے مسکرائے اس کے چوڑے سینے میں سما گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے چاہتوں کے ان حسین لمحوں کو محسوس کرتے ہوئے آنے والی سماعتوں کے منتظر تھے، جہاں عنقریب ان کی محبت اور چاہتوں سے بھرپور یہ چھوٹی سی کائنات مکمل ہونے والی تھی۔ والدین کا اپنی اولاد کے لیے انتخاب کبھی برا نہیں ہوتا، بشر یہ کہ نصیب اچھا ہو، اور جب آپ اللہ کی رضا سمجھ کر بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دیتے ہیں تو اللہ آپ کے سر کے سر کی لاج رکھ لیتا ہے، آپ کی بے ترتیب زندگی کو ترتیب دے دیتا ہے، آپ کی بے مقصد زندگی کو مقصد دے دیتا ہے، اور آپ کو بہترین سے نوازتا ہے، اور ایسی جگہ سے نوازتا ہے کہ انسان آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پر شرط یہ ہے کہ آپ تو توکل کریں، کیونکہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ بے شک۔ ناول کا نام تھا تیری چاہتوں کے اظہار میں، اور رائٹر ہیں طیبہ حیدر۔ تو آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے بس نارملی تھا، فیملی بیسڈ تھا ناول، تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو اب کل ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ کوئی ایسا ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے نام بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔